back over the wall. Nevertheless, his mother in particular decided that Gerhard needed to leave Germany, and they came to England. His name was anglicised and he became Gerard Hoffnung. He went to school in London, but from a very early age he had been a prolific drawer of cartoons and drawings, and he always tried to see the funny side of life. Indeed, there was a school report from him, from his headmaster, saying that Gerard needs to realise that life is not one big cartoon. But at a very young age, at the age of 15, he sold his first cartoon to a humorous magazine in London, and over the years he became famous as a cartoonist, as a raconteur, which was very, very odd, because this young Jewish man looked and sounded like an old English gentleman. He had a bald head, he was chubby, he smoked a pipe, and he became very, very famous, particularly for his monologues. And if you ever want to hear the sort of thing it is, if you put into your search engine the Barrel of Bricks story, you will hear the way that he could play an audience. He was a masterful comedian as well as everything else. In the early 1950s, he had the idea that what he could do would be to show the humour in music. And so he had a lot of musical friends, and he gathered them all round and he said, I've got this idea for a concert which shows the humour in music with all original pieces, and I want you all to be involved. And his friends said, well, great idea, but it all sounds very impractical. But he made it happen, and that first concert happened at the Royal Festival Hall. It was so successful, the whole thing sold out in 2 hours, a speed of ticket sales that had only ever been equalled by Liberace, the pianist. It was so successful, 2 years later, they did it again. Then tragedy struck. One day, he was not feeling well. Within hours, he was dead of a brain hemorrhage, and he died at the age of 34, leaving a young widow and 2 young children. That could have been the end of that part of his legacy, but my business partner, himself a Czech Jew refugee who had come here just before the Second World War, came to know Annette Hoffnung and persuaded her to, Annette Hoffnung being his widow, persuaded her to allow him to put on some concerts to show how he could treat them. And indeed, that first concert was here in Newcastle. After that, they went around the world doing concerts with resident orchestras. And during the history of those Hoffnung concerts on the road, as it were, they went all the way from the Hollywood Bowl in California to Cowboys in Billings, Montana, at one of the smallest capitals, all the way up to Japan, where we did several tours. I say we because later on in the 1980s, I became involved with Tom Bergman on business deals, and he brought me in to the concerts. So when after our concert with Princess Diana in 1990, he had the second of his heart attacks, and some years later he had another one. That one came after we'd had a grand tour. We'd been in Leipzig and Berlin in Germany. We then went to Japan, in Hamamatsu, in Tokyo, and Sendai, and we come back to do a concert in Prague in Czechoslovakia. As I mentioned, Tom originally came from Czechoslovakia. He had fled there when the Nazis moved in for the Second World War. He'd gone back in 1945 to run his family business. He'd become a Czech member of parliament, and one night in 1948 he had a call from a friend in the security service. His friend said, "I'm coming to see you in the morning." That was a cue that the Russians were taking over the government of Czechoslovakia and were coming to arrest him. So at a couple of hours' notice, he and some family friends walked out of the country. They were crossing a ploughed field
in the snow when a Garda bull came up to them with a rifle and said, "Who are you and where are you going?" To which Tom answered, "We're going for a walk." And the guard pulled up his rifle and said, "Good luck." They walked out and he came via Austria, in France, where he played the piano in bars for tips, and eventually ended up in England, where he became the founder of the first public relations company outside of London, and the concerts were in his blood. So when the Berlin Wall fell and Czechoslovakia became free, he said, "We must go to Czechoslovakia and do a concert." I was completely in agreement. I said, "We'll do it for free." And he said, no, we will get paid for it, and we'll get paid in hard currency as well. So we went to Prague, and we took part in Prague Spring, one of the most famous concerts in the Czech musical calendar, at the Smetana Hall. We recorded it. We actually made a video of it, which is still available online secondhand if you like to take a look. And after that concert, very successful, he'd gone back to his home country as a musician on national television, the thing that he'd always wanted to achieve in his life. And a couple of days later, while having a small holiday there, he had another heart attack and died. We went over to Czechoslovakia to pick up his ashes, and we brought them back here to Newcastle, where they are now buried. We thought, well, Netta and I were discussing this on the plane as we were bringing his urn back with us. And we said, well, we don't necessarily have to stop without Tom. Maybe there's a way we can carry on. And indeed we did. And we did that for many years. And we had concerts, again, back in Japan again, all over Europe, at festivals for Fasching, which is the Easter celebrations, the pre-Easter celebrations, for New Year's concerts. These continue to be greatly enjoyed. And I'll tell you more about the content of those and my conversation with Princess Diana in the next part. आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। It's me, Gia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight.
ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. I was talking about humour in music and how we highlighted it. And just as a small demonstration, not a lot of people know, except for small boys, that if you blow into a bottle, you can get a musical note. And here I have 2 bottles, and I'm going to show you that you can indeed get a musical note out. Now you'll notice that these are 2 different notes. It is possible to tune these to the notes of the musical scale. And if you've got 8 bottles, you can get the 8 musical notes in the scale. And if you have 8 bottles tuned, you can play a tune. And one of the tunes that we played in our concerts was the Haydn Surprise Symphony with extra surprises. The point about Haydn Surprise Symphony is it was to stop people falling asleep. It had one big note which woke people up. The thing is, once they are awake, are they going to fall back asleep? What we said was, well, we will put in additional surprises, including local celebrities, VIPs, people that people recognise, playing the bottles, playing the surprise like that. Now that was one of our pieces, but we started off basically trying to visualise, to bring to life the cartoons that Gerard had drawn of musicians in his early life. So at the beginning of our concert was not the conductor walking on as the usual start, but there would be a huge crash of cymbals and a shout of pain. Then a man with a bald head, like the cartoon, would walk on with a pair of cymbals in his hands and his nose in a bandage. This had told people
"This is funny, you're allowed to laugh." And he would then go off, and the conductor would then come on. He would find that there was his concert master, the leader of the orchestra, was missing. At which point there would be the sounds of a police siren, and on would walk somebody carrying a violin case, obviously slightly the worse for wear from alcohol. That policeman was often me. I would be dressed up in a police uniform, and I would come on with my violin case, and I would sit in the vacant leader's spot. I would talk to the audience as I was inebriated. I was jolly. I would be disturbing the whole concert there, and I would get my violin out, and I would go as if to play it. At which point there would be another police siren, and another policeman would come on, breathalyze me, and take me away. This was all simulated, except when we did the Prague concert, because at lunchtime I'd had a glass of wine, and the policeman was a real policeman, not an actor policeman, and had a real breathalyzer kit into which he got me to blow, and it turned green for the camera. So I was really living the life of being this drunken violinist. So much so, that was the only occasion on which I ever wore a pair of jeans. And the reason that I wore a pair of jeans then was because my body double had been filmed previously driving a motorcycle through the streets of Prague, being chased by a police car. Never before, never again have I worn jeans. So the violinist is taken away. There is nobody to be the leader of the orchestra. And the conductor offers the job to the second violinist, and all of them refused to do the job because they were not paid enough money. So he would ask the orchestra, "What do I do?" And at which point there would be a tinkling of a triangle, and somebody would jump up and say, I'll do it," and would walk down, beggars can't be choosers, and would take up position. In reality, of course, he was the real leader of the orchestra, and he would give the tuning note for the orchestra, and then the concert would proceed along. Another of the pieces was called Concerto d'Amore, the Concerto of Love. There's a famous cartoon within the Hoffmann repertoire of a man and a woman playing together on a single violin. And this Concerto d'Amore was written by a famous English composer called Wilfred Joseph, who also trained here in the great city of Newcastle upon Tyne. And he wrote a number of pieces for us under the pseudonym of Maynard Nelson. And Maynard and Nelson were two confectionery or sweetie manufacturers here in Newcastle, and to hide the fact that this serious musician was writing humorous music, he would use this name of Maynard Nelson. So, Concerto d'Amore. I would have done a quick change for this piece, and I would be no longer dressed as a policeman, but I'd be dressed as an impresario, the agent for a young, pretty female violinist who would have a contract to play in the concert, as also had a male violinist. And so, to avoid legal complications, they both had to play. Now, clearly, there would be a lot of tension between the two of them, and that would play out to begin with, until the female violinist would cry a little tear, and the male violinist would give her the opportunity to play on her own. At which point he noticed she's a good player, and he'd notice also she's pretty. And so he gets very interested in her. And the two of them start playing together and to each other. And this goes on throughout the whole of the piece, and at the end she's holding the violin and he is playing his bow as they walk off together off stage with a quick kiss just as they leave. Brings the house down. That was another one of the cartoons that was envisaged by Gerard, which was made into an entire musical work. There's the cymbals, the beer bottles. There is a cartoon of a tenor singer who has a waistcoat
which has the loud and the soft button. And we had an entire sequence of a man for whom we prepared a special waistcoat which would make him sing louder and softer. And he had a whole piece of musical pastiche, cartoonish, on which he would sing the aria, which is called Aria. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं। गरीब आवाम उन फलों को नहीं खरीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए, बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ एक गाड़ी दो गाड़ी सेल करते हैं जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम
गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। There was a range of musical instruments on which we played surprises, including one of them which was a euphonium based on a cartoon which had a beer tap on it. We had this specially made, and inside the euphonium was a reservoir into which beer was poured, and during the piece the euphonium player would turn the tap, he would draw some beer from his euphonium and he would drink it. We would pick on local celebrities who had a party piece. We had a famous British minister who once played the guitar. We always get a ballerina who would dance around. Sometimes we would have a harpsichord player with whom the conductor would make great eyes, and we would get anything which we thought would be a surprise. In fact, in the earliest days, the very first concert, the surprise was 3 vacuum cleaners and a floor polisher, which almost literally brought the house down because of the vibrations that came from it. The final piece in the whole concert was our piano concerto. We had 2 of those for 2 different repertoires. We had the Concerto Popolare by Franz Reisenstein, again a very famous English composer, and we had the Disconcerto written by Maynard Nelson. And we would use whichever one was appropriate. On a second visit to a city, we would use the Disconcerto, and the first one we used Popolare. And this again was to illustrate the tension between the piano player and the conductor. Indeed, on one of our concerts, which was filmed over 2 days at the Royal Festival Hall and was later released as a disc, the entire programme, which is still available second-hand on websites. If you're interested, they're still obtainable for very little money. When there was a dispute between the soloist pianist and the conductor about how the beginning of the concerto should be played, this argument culminated in the conductor going to show how it to be done, the piano player picking up the conductor's baton and then conducted the whole of the concert. The surprise, the gag there was that both of these were talented pianists and talented conductors.
and that would bring the house down and would be the end of the concert. Except we had special encores prepared. One of them was where the whole orchestra would take part, not playing their instruments, but chanting the names of composers. And we would also have another one based on Smetana's, one of Smetana's works, where the tenor would come on trying to sing O Solo Mio as his encore, and would be chased away and would run round the auditorium being chased, and would end up on a balcony far above when he would sing his very final O Sole Mio. After the concert, with which Princess Diana attended, she was the guest of honour. It was in aid of the British Lung Foundation, another one of her charities. There was a reception. I was at that reception. I talked to Princess Diana, and I told her that I was the policeman that she had seen on stage. She was delighted to hear this, and she told me the story of how she and Fergie, the Duchess of York, had dressed up as policewomen and gone out night clubbing in London, which is one of the light-hearted episodes within her life, which is one of the reasons that people loved her so much. Hi, I'm Uma Malhotra, and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial, then an O3 facial? We do the research for you, so we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash, so I used the London Lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea, बहुत बढ़िया." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time.
My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and come on, you come with us. She said, no, let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight.
मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास, जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल, जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि ये बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are.
Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कैम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कैम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ायका होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was.
अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है। पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। Well, here we are again, Badge of Honour. I'm Alan Curry. And if you've been watching the previous episodes, you'll have heard me talk about my early life, parental upbringing, how I joined the police service, what some of my inspirations were. And I've been asked to sort of describe a little bit of how I actually managed to get to the rank of Chief Superintendent. I suppose there's your own personal values. I always wanted to challenge myself. If you put the rank structure in place, I joined as a PC, and the ranks I went through were Sergeant, Inspector, Chief Inspector, Superintendent, and Chief Superintendent. And each one of those ranks has different roles and responsibilities, but each one of those can teach you things to allow you to move to the next rank once you've been able to hit a level of competency. And I never wanted to move on till I felt I knew the job that I was doing or competent. So it's always been in myself to want to progress, to want to learn. I still learn now. I always say you never learn it. And of course, I will qualify this by going back to what my father says. Self-praise is no recommendation. So please take what I'm saying with it. This is not, I'm the greatest. It's just what I was, what I am, because in the way we've moved forward. So each one has a different responsibility. As a sergeant, I had 8 people to look after. As an inspector, I had 20. As a chief inspector, I had 100 odd. And as I moved forward, I finished off with 500 staff. Now, it's really hard to have all those people but each one of the roles and ranks, I wanted to achieve competency in, and that really helped me move forward and progress. And I mentioned in an earlier episode that to be a leader, you have to have followers. And there's a certain amount of respect comes from being a leader
with followers. And one of the things I always found very interesting if we are talking about leadership was I never changed my personality no matter what day I went to work. Like everybody else, I had children, I had a wife, maybe not all things went well at home, but my officers and my staff only ever saw me as Alan Curry, because I felt if they knew how they could work with me and what I could do with them, for them and together, they knew how they could then do the job. So we've worked about the early parts of me doing the job, but I wanted my officers to do the job the way I saw it was done. They were doing my job 20 years ago. They believed in the community, they wanted to help people, they wanted to do the job correctly, and they knew if they did the job correctly that they were always going to get my support. So that's my motivation as I progressed, and my attitude, and probably we've got to go back to family, haven't we? You know, that's what my parents taught me, to be as good as you can be, but not to strive necessarily for money. Money's always a nice sort of aspect to it, but it wasn't the key motivation. It was about personal development. And within that sort of thing, bear in mind I mentioned earlier on that I didn't pass my 11 plus. I did further education. I taught myself. I read books and I watched others. I've said earlier on, you get good habits taught, but some are caught. And I caught an awful lot of good behaviour from people I worked with and for, and that put me in good stead. So you continually learn. I wanted to learn, I wanted to be ambitious, and then the next step is, I never wanted to be the best. I wanted to be the best person I could be, and I wanted to be the best commander I could be. And if I could be as good as I can be, the people behind could be their best without any hindrance or fear of failure. Everybody, I quite like a book called The 1 Minute Manager, and one of the things he always said, or the writer said, catch people doing things right. It's easy to catch people doing things wrong. That's not a problem. But it's about catching people doing things right, and they always remember it. You know, I said about my father, he never gave me much praise, but I always knew he was proud and praising me. Well, I made sure my staff knew when they'd done a good job, they were spoken to, and I went to see them. I didn't sit in an office, but they were some of the habits I caught of other leaders who I respected and dealt with. And I've got to go back to my final word. Part of me being where I was and what I was from the people I worked with, my own upbringing, my personal style, and my desire to learn and to be as good as I can be. Maybe not the best, but as good as I personally could be. ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight.
मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें, अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. I mentioned before the rank structure and how I developed and moved on, hopefully to my standards, but my first promotion was to be a sergeant. Now, it was very unusual for people to get promoted around 5-6 years. I didn't get promoted till 12 years, which was quite late. But I'd been doing my best learning the job, and I got promoted to Jarrow as a sergeant. And now I've got responsibility for the officers, and we had some fine officers there. But not everybody wanted to be a leader. There were some great operators within that community who actually didn't aspire to be a sergeant, an inspector, or moving on. Yes, we always say money would have been nice, but they always were able, the wages were getting better. But some of these individuals, they were striving within the role they were doing. They were permanently trying to be the best they could be for the organisation and themselves. And I think one of the things that was noticeable for me being a sergeant, watching those things, because I was striving slightly differently because I wanted to be a sergeant, I wanted to challenge myself in that role. But I also recognised
more than I did when I was part of the team. That some of my members who made the team and who I had responsibility for were actually as good, and in some ways, if not better, than some of the skill set I had. But what they didn't particularly want to do was take on some of the areas or responsibilities for promotion. But those officers were the salt of the earth in relation to the work they did, pillars of community, been in the area for a long time, knew everybody, could walk down the street, and their ambition and desire was to be as good as they could be within that role. So not everybody can be a leader, not everybody can get promoted, but that doesn't diminish the fact of the job that gets done from the perspective of an individual recognising the values and objectives of the organisation, putting their heart and soul in achieving those objectives, and doing it for both the organisation, for themselves, and from that a recognition, because they were recognised, of their worth in the role that they were doing on behalf of the people we were serving. Yet, I suppose the message that I learned from being the sergeant was, not everybody's going to be a sergeant, not everybody's going to be an inspector, but a lot of those officers progressed within themselves, within the organisation. They didn't hold rank or responsibility, but they were some of the officers I went to for advice and guidance. So not everybody can be a leader, not everybody wants to be, but that doesn't diminish the fact that some fantastic people do not take on the responsibility or role, they take on that personal responsibility and the organisational objectives and the way in which we can do and help people in the community. Salt of the earth. I love working with them. I learned a lot from them, and you never stop learning. Just because you have responsibility for individuals doesn't mean to say that they can't teach you as well as I could teach them. It's a cross-section of skills, a cross-section of skill sets, but it's how you complement each other to a common goal and objective. And these people were great. I can even think of one individual officer who actually, his part-time job, and not a job, he had a role helping out his disabled mother who had an antique shop, and they called him Jack, so it's not going to mean anything, Jack. Jack could go anywhere in Jarrow. He could do anything, he could talk to anybody, he knew everybody. And he was, we mentioned very early on Dixon the Dog Green and people like that. He was your original community police officer who knew everybody, and he'd been at Jarrow for years, and he was one of the most competent officers I've ever met in my service. But he didn't want to be a sergeant. But honestly, if I needed to know anything or speak about people or even learn about certain ways to do the job differently, I'd go to Jack and he'd just say, okay Alan, have you tried this or have you tried that? Back to some of the things I've said. Good habits are taught, but they're also caught. And you can never stop learning from your peers, and you never stop learning from people you work with on a daily basis. And I had as much respect, and always will have respect, for Jack. He was what policing is all about.
Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea, oh, vadya. The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. I mentioned Jack there, who had all the skills necessary, but as a sergeant, I had a few, because it took me 12 years to be a sergeant. So some of my staff were learning different things. And I remember on one particular occasion, we had a burglary in the Fellside area of Jarrow South Shields. And what I used to do, personally as a PC and definitely as a sergeant, as police officers, we had and probably still have a habit of driving quickly to the scene. If it's a burglary or people run away, then we end up in a situation where we drive around the streets for a while and then we leave. Maybe 5-10 minutes. And I used to park the Panda up in a dark alley and just sit near the house and just see if anybody popped their head up or did whatever. So that's what I did. The lads had moved on and I just hid the Panda and just walked around. And sure enough, I was sitting in a hedge actually. And this head just popped up, right? And of course, next thing I know, there's a run on. I was quite fit then, so nobody got away when I was chasing them. The only thing was, and I'm never going to be the tallest police officer you would meet. And it always seemed to be that I was fighting with big lads. So I'm struggling with this guy as best I could as I'm shouting for help now. I'm hanging on to him for grim death. He hit us in the face. I had a black eye. My uniform was ripped and all the rest of it. But I hung on. And believe it or not, it's the first time I'd heard about odontology. He'd broken into the house, didn't admit anything, but he'd had a bite of cheese in the fridge, and we matched his teeth to the cheese to prove he'd been in the house unlawfully. And obviously he ended up getting convicted of burglary and he got 2 years in prison because he had a list of convictions previously. Now, I go back to be habits caught and taught. My staff watched how that happened. They'd never been shown how to do that previously. And from then on in,
We had a method of operating that was from the team again. We'd drive to the situation, we'd drive around, but then I'd always leave 2 officers just sitting in hedges waiting, and we were successful in those sort of things. So that was a great learning process for myself, how to teach people things that they hadn't done because they were younger in service than myself. So I'm learning from the older members, but the younger members are learning from me, and that's back to my little mantra there. Good habits can be taught, but good habits can be caught, and that was a good case for me. Another incident that struck me a little bit, and this is just about how the world moves on. I followed a car with 4 individuals in. They ran away into a block of flats, and I knew, we had the concierge, we knew which flat they'd gone into. There was 4 of them. Now I just think, and again, don't forget I'm teaching as well as learning, that you can't run away from the police, because if you do it once, you do it again. So I got 3 officers, a dog handler, and we had a locksmith, and we broke into the flat. And of course, the next thing is, when we go into the front room, there was 20 young people in there. 4 run in fine, but I didn't know the other 16 were there. So now I've got 5 officers, 1 with a dog, and all the big lads always seem to want to fight with me. So I was fighting in a walk-in wardrobe, and the dog handler came to help and let the dog off, and the dog bit me, right? So I'm now fighting with somebody, the dog's biting me, we've got people all over the place, I'm looking for help. Anyway, one thing led to another, and we got it all sorted and went back to the station. And I spoke to the dog handler, and I said, John, that's not supposed to happen. I shouldn't be getting bit. He told us, he said, the dog's young, he's got to learn. I'll speak to the sergeant tomorrow. Anyway, he came back on night shift. I said, what did the sergeant say? He said he needs a bite. I said, well, he's had a bite of me. But on the same token, he meant a bite of one of the bad lads. Anyway, that same night, we had another intruder's call. We surrounded this small grass area and we arrested the burglar. I went into our custody office at the time, and this lad's standing there with blood on his arms and on his chest, and he wanted to make a complaint. He said he tried to give himself up 3 times. So I went outside, and the dog's sitting next to the dog handler, John. And I said, John, what happened? And he just patted the dog's head and he said, the dog's had his bite. That was another learning issue as well, and another way that we all learned together. Success story, we'd done the job properly, we completed the organisational objectives, and somebody who wanted to commit crime and burglary had been dealt with appropriately. Well, that's me up to my rank of sergeant. Thank you for watching or listening. I believe you're going to see me again in the future. Hopefully I look forward to it and you look forward to it. Thank you. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. You should not let us go, we're fighting. Oh. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was.
अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं। गरीब आवाम उन फलों को नहीं खरीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए, बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ एक गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं, जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। It's me, Jia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight.
इंटरेस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. लाहौर के शाह आलम चौक में एक ऐसी मस्जिद वाक़ है जिसे एक रात में तामीर किया गया था। इस मस्जिद के इतनी कलील वक्त में तामीर की वजह और वाक़े भी इंतहाई दिलचस्प और ईमान अफरोज है। इस मस्जिद के बारे में इल्लामा इकबाल ने यह शेर मौजू किया था, मस्जिद तो बना दी शब भर में इमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। तारीख बताती है कि अंग्रेजों के दौर में इस मकाम से एक मुसाफिर का गुजर हुआ और उसने यहाँ नमाज अदा की, जबकि ये इलाका इस वक्त हिंदुओं की अक्सरियत का हामिल था। हिंदुओं को ये बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने हंगामा राई शुरू कर दी। मामला जब अदालत तक जा पहुंचा और वहां हिंदुओं का मौक़िफ़ था कि इस जगह पर मंदिर तामीर होगा, जबकि मुसलमान यहां मस्जिद तामीर करना चाहते थे। इस मौका पर मुसलमानों के वकील ने इन्हें तजवीज़ दी कि अगर वो यहाँ सुबह फजर से पहले मस्जिद तामीर कर लेते हैं तो केस का फैसला इनके हक में हो जाएगा। ये सुनना था कि मुसलमानों ने गामा पहलवान की क़यादत में रातों रात मस्जिद तामीर करने का फैसला किया और जिस मुसलमान के पास जो सामान था इसने वो मस्जिद की तामीर के लिए वक्फ कर दिया। यहाँ तक कि ख़वातीन रात भर अपने सरों पर पानी रख कर लाती रहीं ताकि मस्जिद की तामीर मुमकिन हो सके। दूसरी जानिब मस्जिद की तामीर मुकम्मल होने के बाद अदालत ने भी मुसलमानों के हक में फैसला सुना दिया। ये मस्जिद 1917 में तामीर की गई और इसका नाम मस्जिद शब्बर रखा गया। ये मस्जिद 3 मरला के रकबा पर तामीर है। दर्ज बाला कथा तो इस रवायत पर मबनी है जो सीना बसीना चलती आ रही है और ज़बान ज़दे आम है, यानी हर एक ने ज़ेब दास्तान के लिए हस्बे ज़रूरत इसमें इजाफा किया। असल मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। नकूश लाहौर नंबर में इस मस्जिद की तामीर का मामला कुछ इस तरह दर्ज है। इब्तिदा में यहाँ पर एक कच्चा सा चबूतरा था जिस पर लोग नमाज पढ़ा करते थे। इसके करीब ही हिंदुओं का एक मंदिर तामीर हुआ। मुसलमानों को मस्जिद पुख्ता करने का ख्याल आया तो हुकूमत ने हिंदू मुस्लिम फसाद के पेश नज़र इसकी इजाज़त न दी। मई 1922 में एक रोज पुरजोश नौजवानों ने आपस में मशवरा करके रात रात में यहाँ मस्जिद खड़ी कर दी। वो इशा की नमाज के बाद काम पर लगे और फजर की नमाज के बाद फारिग हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
1917 की बात है कि यहाँ से एक मुसलमान का गुज़र हुआ, उसने यहाँ पे नमाज अदा कर दी। ये जो सारा इलाका था हिंदुओं की अक्सरियत का हामिल था, तो हिंदुओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान ने हमारे इलाके में आके नमाज क्यों अदा की है, और वो इसमें यानी मुसलमान का नमाज़ पढ़ना बर्दाश्त हुआ, हिंदू ये कहने लगे हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे। और जब मुसलमानों को पता चला कि हिंदुओं का सिर्फ एक मुसलमान का नमाज़ पढ़ना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और सिर्फ इस बात के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे, तो मुसलमानों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे। मुसलमानों और हिंदुओं का आपस में जो है ना तनाज़ा शुरू हो गया। लड़ाई होते होते बात उस वक्त की अदालत तक चली गई। तो उस वक्त की अदालत के जो जज साहब हैं उनने कहा कि मैं सुबह जगह का मायना करके फिर उसके बाद इसके हक़ में फ़ैसला दूँगा। तो जब सुबह जज ने मायने के लिए आना था तो मुसलमानों के जो वकील थे उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि अगर आप रातों रात इस मस्जिद को तामीर कर दें तो हो सकता है ये फ़ैसला आपके हक़ में हो जाए। तो मुसलमानों ने जो आपस में मशावरत की और मशावरत करने के बाद जो है ना फिर उनने ये तय किया कि हम गामा पलवान से दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ और अगर वो हमारी सरपरस्ती करें तो हम एक रात में मस्जिद बना सकते हैं। तो हिंदुओं की चूँकि यहाँ पे अक्सरियत थी, उनका जो है ना लड़ाई झगड़े का भी खौफ था, ख़दशा था कि लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। तो फिर जब गामा पलवान के पास मुसलमानों के जो है ना एक वफ़द गया और उन्होंने जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमारी सरपरस्ती करें, हमारी निगरानी करें, तो हम जो है ना यहाँ पे एक मस्जिद बनाना चाहते हैं और सुबह इस तरह जज ने आना है और फ़ैसला होना है इसके हक़ में। तो उस गामा पलवान ने ये कहा कि जो है ना उन्हें जो है ना हामी भर ली और जो है ना वो तशरीफ़ ले आए और वो शालमी चौक में आके वो बैठे और जो है ना बहुत सारे मुसलमान फिर इकट्ठे हुए तो उन्होंने मस्जिद को तामीर करना शुरू कर दिया। और जब सुबह फजर की नमाज अज़ान का टाइम था तो उस वक़्त तक जो है ना मस्जिद को मुकम्मल तामीर कर लिया गया था। तो फिर जब नमाज हो रही थी तो उस वक्त जो है ना हिंदू आए तो हिंदुओं ने देखा कि ये तो पहले से तामीर शुदा इमारत मौजूद है और मुसलमान तो यहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं। तो इस तरह हिंदुओं ने एक दूसरे को इकट्ठा करके बुलाया हुआ था। कुछ हिंदू तो ये देख के ही वापस चले गए कि भाई ये तो पहले से तामीर शुदा इमारत मौजूद है, मुसलमान नमाज भी अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने दूसरे हिंदुओं से जो लोग थे उनसे कहा कि भाई आपने हमें इतनी दूर से क्यों बुलाया। तो वो आपस में यानी उनको ये कहकर वापस चले गए। और फिर थोड़ी देर के बाद जज आया तो जज ने भी आके क्या देखा कि ये इमारत पहले से तामीर शुदा है, तो जज ने मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला दे दिया। उस वक्त ये कानून होता था कि कोई भी मजहबी इबादतगाह अगर पहले से तामीर शुदा है तो उसको गिराया नहीं जा सकता था। तो फिर जब अल्लामा इकबाल को पता चला कि मुसलमानों ने एक रात में मस्जिद तामीर कर दी है, तो फिर अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पराना पापी है कि बरसों में नमाजी बन ना सका। और इस मस्जिद को जो है ना 1917 में बनी, फिर इसी तरह मुख्तलिफ़ औक़ात में इसको रिपेयर किया जाता रहता है। 1354 हिजरी में इसको दोबारा रिपेयर किया गया। फिर तीसरी बार 2007 में इसके जो लेंटर थे वो बोसीदा हो गए थे और इसको जो है ना फिर 2007 में मेरे सामने जो है ना इसको फिर दोबारा तीसरी बार रिपेयर किया गया। इसी तरह जो वक्तन मस्जिद का जो काम निकलता रहता है तो वो काम होता रहता है। और इस मस्जिद को आज भी जो है ना लोग जो है ना दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और यहाँ पे नमाज़ पढ़ना एक सादत समझते हैं। और अक्सर लोग तो ये भी कहते हैं कि एक रात में मुसलमानों ने कैसी मस्जिद को तामीर किया। तो कई लोग तो ये कहते हैं कि जिन्नात ने शायद तामीर की हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगरचे अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो तो ये तो बहुत छोटी सी इमारत थी। बहुत बड़ी बड़ी और बुलंद इमारतें भी अल्लाह ताला की मदद से बनाई जा सकती हैं। साढ़े वड्डे दसदे ने हिंदुस्तान जो पाकिस्तान बनया सी ना तो उस तो पहले तो यह मस्जिद तैयार हुई है तो एक रात च तैयार हुई सी। जी ना मस्जिद ना तैयार होंदी तो इत्थे मंदिर तैयार होना सी। समझ लो मुसलमानों का जज्बा सी, औरतों का बंदियां का जज्बे के नाल तो एक रात तैयार हुई है। सुबह फजर की नमाज हुई इत्थे तो हाली तक उस तरह ही कैम चलती आ रही है। तो इत्थे बहुत दुनिया आती है जी मस्जिद के बारे पुछते हैं तो फोटोआं लाते हैं, हर एक हिस्ट्री पुछते हैं पिछली
पहले मिट्टी की तैयार हुई सी, उस बाद फिर पत्थर लगा। मेरा नाम फराज नकवी है। मैं यहाँ पे ऑफिस के काम आया था, तो साथ ही मिज़ान बैंक है, तो ये मस्जिद थी। मैं बड़ा सुना था इनके बारे कि ये मस्जिद मतलब एक रात में बनी है, तो बड़ी क़ीदत थी मुझे कि मैं यहाँ नमाज़ पढ़ूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट टाइम ये नमाज़ पढ़ी है इस मस्जिद में। हम पहले ना जज्बा कुछ और होता था, पहले मुसलमान थे वो उनका जज्बा और था, आज भी वैसा ही आ रहा है। माशाल्लाह अच्छी मस्जिद है। मेरी एक ख्वाहिश पूरी हो गई कि मैं इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है मैंने। सर मेरा नाम समीउल्लाह है, मैं बाजोड़ की रिहायशी हूँ। तकरीबन 2010-11 से मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तो इस नमाज में माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने आता हूँ। कारी साहब जानते हैं हमें, तो हमें बहुत सुकून महसूस होती है जब यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ने आते हैं। जो मुसलमानों को उस टाइम का जज्बा है और आज का जज्बा है, तो अंदाज़े मुताबिक मुझे लगता है कि आज भी ज़िंदा है वो वाला। ये एक रात का मस्जिद है, तो उस टाइम तो हम थे नहीं, लेकिन सुना है कि यार एक रात में बना हुआ है मस्जिद। तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है जब यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ने आते हैं, तो बहुत सुकून महसूस होते हैं। सरली में काम करता हूँ, बार होता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस मस्जिद में पहुँचूँ, यहाँ पे नमाज़ पढ़ लूँ, तो बहुत खुशी महसूस होती है सर, बहुत सुकून महसूस होता है। मेरा नाम एजाज़ अहमद है जी। मैं यहाँ पे तकरीबन 1970 से दुकान कर रहा हूँ। और ये शब्बर की मस्जिद जो है ये पाकिस्तान बनने से पहले की बनी हुई है। और इल्लामा इकबाल ने कहा था, मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पापी पुराना था बरसों नमाजी बन ना सका। बहरहाल ये मस्जिद बहुत पुरानी है। और उसके सामने ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये मोती मंदिर है। इंदिरा गांधी के दादा का, नेहरू का मंदिर था। और मस्जिद जो थी वो इसके मुकाबले में बनी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मस्जिद नहीं है, तो रातों रात ही तकरीबन 24 घंटों में ये मस्जिद तैयार हो गई थी। पाकिस्तान बनने से पहले की मस्जिद है ये। और अब आज आपने भी देख लिया है, और मस्जिद उसी हालत में जैसे पुरानी पहले थी, वैसी की वैसी मस्जिद आज भी वैसी की वैसे ही है। यहाँ पे उस वक़्त मुसलमानों को हुकूमत नहीं थी, हिंदुओं की हुकूमत थी। यहाँ पे ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मंदिर था, और मंदिर के सामने जो है ना जगह थी एक, वहाँ पे अपना गामा पहलवान था। और यहाँ से कहते थे कि मस्जिद जब बनाई गई है ना, रात को शुरू की है 4 बजे इशा के बाद शुरू हुई है, और सुबह अज़ानों के फजर की नमाज जब हुई है ना, तो मस्जिद तैयार हो गई थी। लोहारी यहाँ से लेकर ना तो अपना दिल्ली दरवाजा तक ईंटों की लाइन लगी हुई थी लोगों की। उन्होंने पत्थर ला के एकदम मतलब रातों रात मस्जिद बनाई थी ये। और एक रात में ये मस्जिद, सुबह उन्होंने मुआयना करना था, अंग्रेज़ ने आकर मुआयना करना था, डालर ने आकर मुआयना करना था कि ये मस्जिद यहाँ पे जगह है कि नहीं। सुबह आई तो देखा तो हाँ मस्जिद की जगह मौजूद थी, मस्जिद बनी हुई थी उस वक्त। उसने डिक्लेयर किया था कि हाँ मस्जिद ठीक है, मस्जिद की जगह ठीक है। मेरा नाम जी शहजाद अब्दुल हमीद है जी, और मैं अंदरून लाहौर का रहने वाला हूँ, रहायशी हूँ। जद्दी पुश्ती लोग हैं, हम इधर के रहने वाले। तो ये जो मस्जिद है, आप इसके बारे में मैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बाप दादा ने जो बताया, ये एक तारीख़ी मस्जिद है, बहुत ज़्यादा तारीख़ी मस्जिद है। असल में ये जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे, सारे लोग ये इकट्ठे थे, तो उस वक्त ये मुसलमानों ने कहा कि ये मस्जिद है, हिंदू कहते थे ये मंदिर है। तो उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इल्लामा इकबाल साहब थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, वो वकील थे। तो उन लोगों की मुशावरत से और लोगों की मुशावरत की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ये सुबह आकर देखेंगे ये क्या है, मंदिर है, मस्जिद है, क्या सिलसिला है। तो मुसलमानों में आपको पता ही है क्या जज्बा होता है। ये आपने जब इस्लाम की बात पे आता है तो वो अल्लाह के हुक्म से फिर और बन जाता है मसला। तो फिर लोगों ने यकदम अल्लाह की मदद से एक रात में खड़ी हो गई थी। ये तारीख़ी बात है। ये भी ये मस्जिद शब्बर एक रात वाली मशहूर है पूरी वर्ल्ड में। इधर से बड़े बड़े सियाह आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं। मैं इधर मेरा काम है ये कबाड़ वगैरह का, तो मुझे 25 साल से ऊपर हो गए चौंक में, 25 साल से ऊपर मुझे हो गए हैं। तो बाप दादा ने बताया, तारीख ने बताया, ये एक तारीख़ी मस्जिद है, अल्लाह पाक की दी हुई एक नेमत है। तो खुदा की मदद से उस वक़्त के लोगों ने ईमान था, जज्बा था, उस वजह से ये एक रात में तमीर हो गई है।
इस वजह से इसको एक मस्जिद शब्बर अल मशहूर एक रात वाली मस्जिद शालमी चौक कहते हैं। मट्टी और गारे का दौर था, वो मट्टी और गारे के ज़रिए उन्होंने ये इसको तमीर कर दिया अल्लाह पाक की रहमत से, नबी पाक के सदक़े। तो ये ना मतलब कि खड़ी हो गई। सुबह आके देखा जब गवर्नमेंट ने तो ये मस्जिद थी, फजर के ज़ान इन्होंने दे दी मुसलमानों ने। तो जैसे हिंदू पहले सोए रहे थे उस वक्त भी अल्लाह के हुक्म से वे सोए हुए थे। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Met some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. गर्मी का राज होता है। ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि ये बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबारे को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं।
Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea, oh, vadya. The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else.
Hello, welcome back. Terence South talking about line of duty. I left you in a very somber place last time. We were talking about leadership. We've got this commanding officer. He's got to move the battle forward, and he's still got to take that personal time to write letters to family, mothers, and I assure you, it's not easy. It is not an easy thing to do. And leadership comes through experience, it comes through things going wrong. People talk about leaders nowadays, and they're not, they're just the head of the department. Because you've got, leadership is sort of what you learn on the shop floor. And then you're going to try and take a guy who's a leader into being a manager. And that's not an easy transition, but some people do make it. And so that's the sort of thing that the army takes you through, the rank structure. You're going from learning about leadership after being in the lower ranks, learn about leadership and come into management. And that's what the rank system in the army does for you. And in doing that, you always remain flexible. You always remain with the ability to change shape and size. Otherwise, it's not going to work. So, here we are with this guy now who's like a great leader. And one day we're out there on the battlefield and we'll make contact with these Argentinians, and we have a few Argentinian prisoners. And there was an officer there who, to be quite honest, I had very little respect for, because I had nothing to do with him. Simply, I had nothing to do with this guy. But he spoke in a really, shall we say, posh English accent. And it was for that reason, me being a lad from a farm, council estate, rough, tough life as a kid, I was like, nah, I just didn't gel with it. I just didn't get on with it. And I didn't understand it. And so we've got this captain, who I don't necessarily like. Got to work with a guy. The Argentinian prisoners come in, and this guy just went straight into Spanish, speaking to the Argentinians, bang, 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 and he's talking to these prisoners. And I'm like, wow. I was 21 years of age. I was in a battlefield 8,000 miles away from home, and I decided what I want to do in life. I didn't want to be a soldier. I'd been waiting for my career change, and that was it. I wanted to be an interpreter. And that's ridiculous. I'd had all these chances in life, and there's me with the wings on one arm, I had a dagger on the other arm. I was at the top of my career as far as a soldier's concerned, and 8,000 miles away from home, it's like, I want to be an interpreter. Why didn't I know that when I was a kid? It's strange, it's just something in life. The timing was right. Was it because of what I'd seen, what I'd done, understanding the risks of the job I was in? What was it? It was just, at the end of the day, the timing was right. And after the military career, I went into a career interpreting. However, we're still there at war, and we've got to sort it out. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are.
I'm Robin Ashby. I'm a city councillor. I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs, and it's cold as well. सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कायम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कायम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। Listening to the radio, listening for my friends to make sure my friends is okay, and it's natural to do that. So, here's Dan Newbold. Dan, what's he doing? Looks at the map. He's on the road to Stanley, right? He's outside Stanley Racecourse. Wow. Dan, we have a quick chat. He confirms where he is, and I goes in to see my boss. Ron, come here.
You don't go into meetings that of that size and that shape and get your commanding officer to come to you. So he was like, this must be serious. And he's saying, no, and I'm saying, yes, you come here. Across he comes and says, right, listen to that. Dan Newbold, he's outside Stanley. Is he? No, there you are. Dan, where are you? Boom. Royal Engineers command officer then went in and spoke to Julian Thompson and says, Trooper are on the road into Stanley. No, yes they are. Have a talk to him. So the next thing I know, I'm being briefed. I'm with the bodyguard for the brigadier, and a helicopter comes forward, takes us as far to Stanley as we can, puts us down next to a minefield. I take them across the minefield, we're onto a path, and then we're away and we're down into Stanley. The thing was, what I'd heard in the radio centre was that it had been negotiated that British troops would not pass the gates of Stanley Racecourse, Port Stanley being the capital city for the Falklands. They wouldn't pass that, and they were already past it. And they were going to do that to save life. No good going into the streets fighting, the war was over. Their backs was to the sea. There was only a mile behind that, it was pointless. So, knowing that was the reason I spoke to Dan. I shouldn't really be talking to him, but I did. Spoke to him, whole thing went back, and it saved life. And at the end of the day, that's what a lot of soldiers do. They try and preserve life. They don't just kill. So, time goes on, and we go to Stanley, and there's about 5 of us in the Secretariat building. Myself, some SAS guys, Rod, Julian Thompson, they're all there. My job was to sort out some booby traps which had been left, which were trivial little things with hand grenades and pins. We just put the pins back in, sorted them out. We could use all the rooms. But there was 2 Argentinian guys downstairs. Went down, had a chat, we couldn't speak English, but it was sign language. We had a cup of tea together. They wanted to see me knife, they wanted to see this, that and the other. They couldn't believe how well the equipment had been maintained, because their equipment was in poor order. So anyway, we're upstairs, and then Rod MacDonald comes across and says to me, South, I want you to go and get the maps that the Recce Troop have, because they have the very best maps that we have on the island. You've got to remember that the Falkland Islands wasn't a inhabited island as such, it was just the periphery that was inhabited. And the central area, and a lot of it, was just white space on a map. And only when the Falklands conflict started did they actually start and make maps covering the whole of the island. And because Recce Troop were the ones responsible primarily for the front line and the minefield clearing and access and egress across minefields, they were the people that had the best maps so they could document them. What we needed to do was get our best maps alongside the Argentinian maps, find out where the minefields were so that we could bring people down off the mountains and into the dry, into the safe, with minimum risk to limb, because that's what you do, lose arms and legs. So anyway, it was like, go do it. I was just told to do it. I was just like, go do it. So, picks up my weapon, puts it on, gets my rifle, downstairs, opens the door, down the stairs, and I sits next to the building for 5 minutes with my weapon. Let my eyes adjust, watching what was going on. And to my left, you had the street with a few what we call ferrets, armoured cars in. You had a lot of drunken sort of Argentinian soldiers. You had the odd shot going into the air, and it didn't look very organised or disciplined. And so my job was to get from here, about 1.5 miles down the road, into where Recce Troop were, get their maps and get back. And I was going to do it by myself. Right. As I set off, I then realised the problem I had. Because these people here, who were the Argentinians, were actually looking out to sea.
So they could see me walking across the cliff tops. And that was dangerous because the peace agreement hadn't been signed. A lot of them had drink and they still had their guns. What am I going to do? I'm out there, I'm exposed, and I've got 50, 60 Argentinians to my left, no more than 200 metres away. I'm outgunned, I'm outrun. What am I going to do? I'd been in Northern Ireland before we went to the Falklands. So I went down onto one leg and they all looked. And then I'm waving my arms about. You go there, you go there, you go there. And they're all watching. And there's only me just flinging my arms about. You go there, you, and they're all going, where's all these men? Where's all these men? But they did realise it was only me. I moved forward another 50 metres, got back down, and I'm using my arms to these invisible men, and these Argentinians were looking around, and they couldn't believe what was going on. They thought there was other men with me, so they didn't come for me. And I did that and did that and did that until I was out of their way, and I was off like a shot. Into Retty Troop, got the maps, did what I needed to do, and then half an hour later so, made my way back. And I made my way back using the same, what they term, pepper pot. And it's, in the British military, it's known as a lost man drill. Because if you're lost and you're separated from people, so people don't attack you or take you on, you make yourself look bigger than you are. And you use this lost man drill, communicating as you do, not in normal infantry battalions, using your arms, moving people A to B. So they think there's people around you. And that normally does enough to get you away, out of harm's way. So we're back, and the peace agreement that night, next morning, was signed. And there's me, again, 8,000 miles away, and you're listening to Margaret Thatcher on the telephone in the right next room. It's just unbelievable to be part of something that's so big going on in life, in the world. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial and then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea, oh, vadya. The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time.
अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। So next day, peace is signed and the Argentinians are moving off onto the airfield. The British troops are coming down, Argentinians go to the airfield, British troops are in the town, the two are naturally separated. And so we moved into a house, myself, Roderick MacDonald, the SQMS, a few guys, all nice in one house. And it was really great to see people and be able to talk and let steam off and just talk about things other than war. So anyway, it was funny because it was like a relief. You were still there. Time goes on, I've got a job for you. I need you to go to the airfield. What? Well, we've been told, and the images tell us that we have, that some of the aircraft that's on the airfield are still armed. And we're putting prisoners on the airfield that could potentially fly those planes. So we just need to sabotage those aircraft to make sure that they can't fly. Come south, get a team of men and go. What? There's about 2,000 prisoners on that airfield, and you want me to go with 3 men, 4 men? Yes, yes, off you go. Oh my God. So, we commandeered a vehicle, got some lads together, armed to the teeth, and off we went. Down onto Stanley Airfield, there was hundreds and hundreds of Argentinian prisoners around us. None of them really wanted to fight. They'd had enough. They were cold, they were wet, they were demoralised, and it was very much a conscript army and lads who just didn't want to be there. They weren't
professional soldiers. They were very much conscript soldiers. So in that sense, it was uneven match. However, the Argentinians did have some really good professional soldiers in 604 Squadron. However, we get on the airfield and then they're starting to surround us. It's like getting really uncomfortable because there's only 4 of us. So we have these 40-foot containers and it was like, we've got to stop this aircraft. What are we going to do? Right, let's see what's in the containers. So we had these huge bowl croppers. We snapped open these locks. Wow, it's all dry clothing. Why are these men on the mountains when we've got containers of dry clothing here? So no sooner we had those doors open, those Argentinian guys were in, changing their clothes, putting dry clothes on, and they were thrilled with me. Right, next, get over the next one. What? He went from being my enemy or somebody I was frightened of to being my mate. Open the next container, and I opened the next one. The next one had food in. It had red wine and beef in tins. Open up, and they now had food. I opened the next one and the next one, and none of them were of any use to me. Anyway, we had one with what they call janitorial supplies, which is anything you need to clean. I had brush shanks in. I thought, that'll do. So I got these huge brush shanks. Went to this aircraft, and I just got it and got a big hammer and smashed this brush handle straight up the engine so that the fan couldn't turn, and left it. We turned around, did that to all the aircraft, done away, gets back to camp. Great, no problem. Next day, command officer comes in, says, I want you to go and find all the Exocet missile cases. What? Those big things, yeah. Round them up, put them all together into one place because we need to account for them. Right, so we did that. Myself, got a group of guys together, went and got all these Exocet missile cases, put them together. And then I'm up there a few days later, I'm saying, wow, this is ridiculous. This Exocet missile case opens both ends. It's really just like a big tube. And guys there going to the prisoner camp, which was the airfield, these poor Argentinian guys are having to walk through this river and the soaking before they get there. That's not really humane. You know, we're engineers, let's do something. So we dug out this little riverbed, we got this Exocet missile case, dropped it in, kept the doors open each end. The water went through the Exocet missile case and we built it around, and it was like a little bridge across so they could go without getting wet. And that was what we did. We're engineers, it was a case of thinking about it. I mean, how would you like to get wet feet? So we did that. Again, we're back to the safe house and cut us out. Somebody wants to talk here. All right. So down I goes to the schoolhouse, and it was this senior guy from the Royal Navy. And he, are you the man who put the brush up the back of the engine in the aircraft on the airfield? Yep. Good God, man, why did you do that? And this guy went at me like bang, 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 bang. This is because we were putting pilots onto the airfield who could have flew that aircraft. No, they're prisoners. No. There was a live aircraft, there was a live pilot. You put a pilot and an aircraft together. No. You listen to me. And I got right grilling, and it was like, you. I said, I'll just take it. I've had enough. I've been to war. I've had enough. If I've been to war, I'll take that out and take you. So anyway, I was marched out. Where I went, back in the house. Next day, cut south. What you do at the schoolhouse? Why? Don't know. Down I goes again. Walk through the door. The same guy's in front of me. You again? What's I don't know? What are you doing with these missile cases? They said there was 6 and now there's only 5. Yeah, I'll find it for you. He didn't like the idea that I'd use one as a culvert to put the water through so the prisoners could walk down in the dry instead of having to trudge through a river. He didn't really understand that, but he was just working on what he'd been told.
So I got 2 real grillings there. It was unbelievable. For doing work, which was essential. But you just keep your mouth shut, yeah, let it go over your head, get back on the bus, and that's life. So the war's all finished. You've got a few casualties. They've all gone off on special ships, and then you're ready to go home. And then you get the call, you're not going home. You use engineers, specialists. You're going to look after the minefields. But why? If you're sending the Royal Marines and the paratroopers home, why can't we go home? Well, things changed anyway. We did go home, but we lived for a long time thinking we weren't going to go. Anyway, I'd like to thank you again for listening. This is Terence South signing off on Line of Duty. ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें। अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent.
talking about me and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Met some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well.
Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है।
इंटरेस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए में। हाँ, एक टाइम आया था जब काफ़ी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा है। गरीब आवाम उन फलों को नहीं खरीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए। बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ 1 गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। It's me, Jia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity, as opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else.
Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर में हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, पीआईए निजकारी और उसके बाद अब बारी है रेलवे की, इसको भी निजकारी करने जा रहे हैं। और रेलवे का जो मजदूर है वो बेचारा कहाँ पे जाएगा। मुल्क में पहले ही इतनी बेरोज़गारी है, लोग परेशान हैं और लोग मर रहे हैं। जब ये इदारा ही बंद हो जाएगा और प्राइवेट हो जाएगा तो जितने भी मजदूर हैं सरकारी वो उनको निकाला जाएगा, तो वो मजदूर बेचारा कहाँ पे जाएगा। आज इसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद पीआईए के ऊपर भी बात करेंगे आज। और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं चौधरी महमूदुल अहद, सदर रेलवे प्रेम यूनियन वर्कशॉप पाकिस्तान। ये लीड कर रहे हैं रेलवे को और पाकिस्तान के जितने भी मजदूर हैं उनको लीड कर रहे हैं। तो जो मजदूर की जो सैलरी है, गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि जी 32,000 से 37,000 रुपये जो मजदूर की सैलरी वो दी जाएगी, मगर वो भी जो नारा था और जो ऐलान था मगर अपनी महदूद लिमिट में रह चुका है, बढ़ाई नहीं गई सैलरी। इसके ऊपर बात करेंगे आज कि अब जो मजदूर है किस हाल में है और जो मजदूर की सैलरी जो 32 से 37,000 की थी, क्या वो उन मजदूरों तक सैलरी पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही, क्या वजह है। चौधरी साहब से बात करते हैं। चौधरी साहब, आप मजदूरों की आवाज़ बनते हैं और हर फोरम पे ऊपर आप खड़े होते हैं, मजदूरों के साथ खड़े होते हैं। पीआईए के बाद, स्कूलों के बाद अब बारी है पाकिस्तान रेलवे की, जो एक पहिया चलता है और गरीब सफ़र करता है उसके ऊपर। अब वो भी गरीब से छीना जा रहा है, तो गरीब बेचारा कैसे सफ़र करेगा। एहसन भाई, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही है
कि रेलवे एक कौमी अदारा है, रेलवे एक रफाही अदारा है, अवाम की सहूलत के लिए एक अदारा है, और इसके साथ साथ ये एक दिफाई अदारा है। फौज की सारी जो सहूलतकारी है वो रेलवे करता है, इसलिए ये एक अपनी अहमियत का एक हामिल अदारा है। लेकिन हुकूमत वर्ल्ड बैंक IMF के एजेंडे को इस मुल्क में नाफिज करना चाहती है और उसी के तहत ये इसको प्राइवेट करने जा रही है। तो सर ये ऐलान हो चुका है और इसके ऊपर अमल कब होगा? अब देखें, अमल तो इस पे नहीं होना चाहिए। हमारी तो यही कोशिश और ख्वाहिश होगी कि इस पे अमल ना हो, हुकूमत इस सोच और ख्वाहिश से बाहर आए। लेकिन ये हुक्मरान जो है गैर महसूस अंदाज से अपने एजेंडे को मुकम्मल करते हैं। पिछले एक तवील अरसे से ये आए दिन गाड़ियों को प्राइवेट कर रहे हैं और प्राइवेट मालकान के हवाले वो गाड़ियां कर रहे हैं। जो रेलवे की वर्कशॉप्स हैं उनको भी प्राइवेट करने और उन्हें जो है ना प्राइवेट सेक्टर में देने के लिए वो कोई ना कोई आए दिन मनसूबाबंदी बनाते रहते हैं, उस पर फिजिबिलिटी बनाते रहते हैं, उस पर विजिट करते रहते हैं, ताकि किसी वक्त भी ये सारा कुछ वो अपने पाया तकमील तक। तो सब ये वजह क्या बनी? आखिरकार कोई तो वजह होगी ना, तो इसको प्राइवेट करने जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है इसकी, क्यों प्राइवेट करना चाह रहे हैं इसको? देखें, ये रेलवे को वजह तो अभी हम इसमें तलाश करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर पिछले 40-50 साल में देखें तो यहाँ पे 1 लाख से जायद, 1.25 लाख से जायद मुलाजम थे और आज यहाँ 60,000 भी नहीं है। 1.25 लाख से 60,000 तक पहुंच चुके हैं। यानी मुलाजमीन की तादाद आधी से भी कम रह गई है, जबकि अफसरान की जो तादाद है वो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, यानी कि ये एक खराबी का सबब ये कह लें। दूसरा, ये जो जितनी रेल की इंतजामिया है और जितनी ब्यूरोक्रेसी है, इन्होंने रेल को बेहतर करने के लिए कभी प्लान ही नहीं किया। कभी इसको जो है ना मुनाफे में ले जाने के लिए या इसकी जो खराबियां उसको दूर करने के लिए इस पे प्लान ही नहीं किया और इसीलिए ये दिन ब दिन जो है ना खसारे की तरफ जाता गया। हालांकि अब इस वक्त जो रेल इंतजामिया दावा कर रही है कि हमने 1 साल में 55 अरब रुपया कमाया है। 55 अरब रुपए 1 साल में कमाया है। इन बुरे हालात में 55 अरब कमाया है, तो फिर इसको प्राइवेट करने का क्या जवाब है? देखें ना, अगर 55 अरब रुपए कमाया है, ठीक है, तो वो 55 अरब रुपए गया कहाँ पे है? वो गया कहाँ पे है? अगर ये कमाया है तो गया क्या है? रेल के मजदूर को क्या दिया है? ये अफसरशाही है। इनके अगर आप दफातर देखें, इनके अगर आप सहूलतें देखें, इनके अगर आप गाड़ियां देखें, इनके अगर आप अख्तियारात देखें, इनके अगर आप पेट्रोल और इनके घरों का स्टाइल देखें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि रेल को तबाह होने की वजह क्या है। ये तो आपको तो इसको फिर कौन बचाएगा? कौन सी ऐसी यूनियन सामने आएगी? आप तो अपना काम कर ही रहे हैं, मजदूरों के साथ खड़े हुए हैं और आप लोग एहतजाज करेंगे, आगे आएंगे? देखें, हमारा तो ये बच्चों के फ्यूचर का मसला है। अगर ये अदारा बंद होता है तो आज भी तकरीबन 1 लाख के करीब खानदान इसके साथ वाबस्ता हैं। वो 1 लाख खानदान को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये को 8-10 लाख अफराद बन जाते हैं। मुल्क के जो मुआशी हालात हैं वो पहले ही खराब हैं। लोगों की जिंदगी गुजारना एक मुश्किल बना हुआ है और ये बेरोजगारी का एक नया तूफान आएगा। इसलिए रेल का मजदूर तो इस पे जदोजहद करने के लिए, इस पे मजामत करने के लिए तैयार है। चौधरी साहब, एक तरफ से नारा लगाया जाता है कि गुर्बत को खत्म करेंगे, रोजगार पैदा करेंगे, दूसरी तरफ से ये आपके सामने है, रेलवे देख लें आप, अब वो निजकारी के धान पर पहुंच चुका है। वो ये हुकूमत जो है, मैं इसको क्या कहूँ, ये वैसे ही एक गैर कानूनी हुकूमत है, लोगों की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, किसी खास और महसूस तरीके से इसको इक़्तिदार तक लाया गया है। ये लोगों की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, इसलिए इसको लोगों की फिक्र नहीं है, आम आदमी की इनको फिक्र नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक और IMF के कहने पे एक एजेंडा है जिसको वो लेके चल रहे हैं। ये रेलवे को भी प्राइवेट कर रहे हैं, PIA को भी प्राइवेट करना चाहते हैं, यूनिटी स्टोर और इस तरह के एक नहीं दर्जनों महकमे हैं जिसको ये आस्ता आस्ता प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं। कहने का मकसद आपका ये है कि लिस्ट बन चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता जो बड़े बड़े नाम हैं वो अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं, जो दूसरे जो छोटे नाम है वो बाद में किए जाएंगे। ऐसे ये अमल जारी है, ये अमल जारी है। लाहौर में एक छोटा सा अदारा है पिटाक,
उसमें चंद लोग हैं उसको प्राइवेट करने जा रहे हैं। वो एक टेक्निकल अदारा है, उसको प्राइवेट करने की इससे क्या जरूरत है? उसको आप बेहतर करें, उसको आप इंप्रूव करें, उसको आप प्रॉफिट में लाएं। तो ये एक अदारा है। इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल अदारे प्राइवेट लोग बना रहे हैं, आप एक सरकारी अदारे को बंद करने जा रहे हैं। ये रेलवे की हम बात करते हैं कि जिसको बंद कर दें। पाकिस्तान में जिनके पास 2 बसें थी, 4 बसें थी, उन्होंने बड़े बड़े फ्लीट बना लिए हैं, जो ट्रांसपोर्टर बन गए हैं, ट्रांसपोर्टर बन गए हैं। ये आप डेवो की मिसाल देख लें, चंद साल पहले इन्होंने इसका कारोबार शुरू किया था। एक रूट पे चंद बसें थी, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम रूट के ऊपर उनकी बसें चल रही हैं। तो ऐसी कौन सी वजह है कि जो है ना रेल तरक्की नहीं कर सकी, रेल बेहतर नहीं हो सकी? पूरी दुनिया के साथ इसका मुवाजना करें, दूर ना जाएं, इंडिया को देखें। वहां यहाँ चंद ट्रेनें चल रही हैं, वहां सैकड़ों ट्रेनें चल रही हैं। ये खसारे में है, वो प्रॉफिट में है। तो अभी तक साहब कितनी ट्रेनें जो हैं वो चल रही हैं लाहौर से? अभी चंद ट्रेनें हैं जो चल रही हैं, ठीक है, उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं। तो इसलिए ये तो मैं समझता हूं कि जो रेल की इंतजामिया है, जो बड़े बड़े दफातर में बड़ी बड़ी तनख्वाहें और बड़ी बड़ी सहूलतें लेके बैठे हैं, ये उनकी नाकस पॉलिसी की वजह से। आप लोग उनके ऑफिस का घेराव करेंगे? देखें, जब ये नौबत आएगी तो रेल का मजदूर उठ खड़ा होगा, तो फिर ना इनके दफातर बचेंगे, ना इनके इख्तियारात बचेंगे, ना इनकी सहूलतें बचेंगी। इंशाल्लाह ताला ये हालात आगे बनने जा रहे हैं। तो रेलवे मुलाजमीन कितने हैं इस टाइम जो मजदूर काम कर रहे हैं अंदर? कितने हजार की तादाद? इस वक्त तकरीबन को 58-60 हजार के करीब इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर इनकी तादाद है जो पूरे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। यानी कि आप लोगों की कैंपेन अब जारी है, ऐसे ही है? कैंपेन क्या जारी है? लोग परेशान हैं, लोगों के अंदर जो है ना बिल्कुल जो है ना वो परेशानी का इजहार पाया जाता है। लोग बेचैन हैं, लोग समझते हैं कि हमारा क्या बनेगा अगर इसको प्राइवेट कर दिया जाता है या किसी कंपनी के हवाले कर दिया जाता है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे फ्यूचर का क्या बनेगा? हमारी नौकरियों का क्या बनेगा? हमारे खानदानों का क्या बनेगा? तो इसलिए लोगों के अंदर जब बेचैनी पाई जाए और लोग परेशान हो तो फिर उठ खड़े होते हैं और वो एक बड़ी जद्दोजहद के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एक बंदा रिटायरमेंट के करीब है, अगर इदारा जो है प्राइवेट हो जाएगा तो उसकी रिटायरमेंट तो गई, फिर सारा कुछ गया, पेंशन भी गई, रिटायरमेंट भी गई, उसका पेंशन भी गई, उसका जो भी इस वक्त टूटी फूटी उसको रहायश मिली हुई है वो भी उससे गई। वो कहाँ जाएगा? उसको कई लिहाज से परेशानियां जो है ना उसको घेरे हुए हैं। और उसके बाद जो है ना जितनी तनख्वाह भी है इस वक्त, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं हसन भाई कि पाकिस्तान में सरकारी इदारों में सबसे कम तनख्वाह अगर है तो पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन की है। नहीं देखें ना जो साहब, अब आपके वुज़रा देख लें, पंजाब असम्बली के देख लें, आप कौमी असम्बली के देख लें, जिनकी तनख्वाहें लाखों में थी, यानी कि 2 लाख 3 लाख, अब लाखों रुपए बढ़ा दिए गए, 5 लाख तक गेम पहुंच चुकी है इस टाइम। तो वो कहते हैं अभी हमारा गुजारा नहीं हो रहा। अभी किसी से आप पूछ लें, मुशीर से पूछ लें या MPA और MNA से पूछ लें, तो वो कहते हैं यार बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। और इनकी मेहरबानी है जो लाखों में इजाफा किया है। जो एक मजदूर की सैलरी थी 32,000 और ऐलान हुआ था कि जी 37,000 रुपए इनको दी जाएगी उजरत जो है महीना की, तो वो तभी इनको मिल रही है कि नहीं मेरी पूरी 37,000? ये भी आपने जिस अरकान असम्बली के तनख्वाह में इजाफे का जिक्र किया है, ये एक रियासत और 2 कानून हैं। एक तरफ उनका जो गुजारा 1 लाख में नहीं हो रहा, वो 4 लाख की तरफ चले गए हैं। जो वजीर की तनख्वाह 1 लाख थी वो 9 लाख की तरफ चले गए हैं। दूसरी तरफ जो आप कम से कम तनख्वाह है वो 37,000 है। ठीक है चल साहब, इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक का टाइम है। नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास, जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल, जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबारे को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी तनख्वाहों के हवाले से। जो साहब, कितनी तनख्वाहें हैं अब रेलवे मजदूर की? अब रेलवे मजदूर की तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के सरकारी इदारों में सबसे कम तनख्वाह वो रेल के मुलाजिम की है। कितनी? 32 से 37 हुई नहीं थी? वैसे ऐलान तो हुआ था। नहीं, देखें, ये 37,000 इस महंगाई के दौर में, इन पेट्रोल की कीमतों के दौर में, इस बिजली के बिलों के दौर में जो इजाफा हुआ है वो 32,000 से 37,000 रुपया इजाफा हुआ है। महंगाई में इजाफा हुआ है कई 100 गुना और तनख्वाह में इजाफा हुआ है 16%। और ये 16% इजाफा तो ये तो ऐसे आटे में नमक के बराबर है। इससे कौन से हालात बदल सकते हैं? इससे कौन सी महंगाई का मुकाबला हो सकता है? लेकिन उसके बावजूद इस पे अमल नहीं हो रहा। रेलवे में भी अमल नहीं हो रहा और पंजाब के मुख्तलिफ अदारों में, ये सरकारी नोटिफिकेशन है, सरकार ने फैसला किया है और सरकारी अदारों में ही इस पे अमल नहीं हो रहा। क्या वजह, क्यों नहीं अमल हो पा रहा? एक ऐलान हो चुका है, सारा कुछ हो गया, प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, वो तो ऐलान के मुताबिक सरकारी अदारों में अमल नहीं हो रहा तो प्राइवेट अदारे कैसे अमल करेंगे? प्राइवेट जो सरमायादार है वो तो 1,000 रुपया भी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वहां तो बिल्कुल ये नामुमकिन है कि वो इस 37,000 के नोटिफिकेशन पे अमल करें। सरकारी इदारों में नहीं हो रहा। मेरा ताल्लुक एलडीए से भी है। एलडीए में अभी तक जो डेली पेड हैं उनको 37,000 रुपया नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे प्राइवेट इदारों को मैं जानता हूं जहां जो है ना वो 37,000 रुपया नहीं दिया जा रहा। ये हुकूमत की कमजोरी है। तो आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, क्यों नहीं दिया जा रहा? वजह क्या आखिरकार? हुकूमत की कमजोरी है, हुकूमती अदारों की ये नाकामी है। इस पे जो इम्प्लीमेंट कराना है वो जिली इंतजामिया ने करवाना है। इस पे जो अमल दरामद करवाना है वो लेबर डिपार्टमेंट ने करवाना है। लेबर डिपार्टमेंट का एक स्ट्रक्चर मौजूद है, उनके इंस्पेक्टर मौजूद है, उनकी एक पूरी हायरार्की मौजूद है। लेकिन वो इसको देखने के लिए या इस पे अमल करवाने के लिए अपना कोई रोल ही अदा नहीं करते। आप लोगों ने कंप्लेन की, किसी को बताया कि भाई आप लोगों ने जो ऐलान किया था और उसके बाद इसके ऊपर अमल नहीं हो रहा, जो सैलरीज हैं जो मजदूर की वो 32 ही आ रही है, 37 नहीं आ रही, तो क्या कहते हैं आगे से? क्या रिस्पॉन्स मिलता है आप लोगों को? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। यहाँ जैसे
फेक किस्म की पोर्टल बने हुए हैं जी, आप पोर्टल पे इतला करें, मिनिस्टर साहब ने भी बनाए हुए हैं, दूसरे लोगों ने भी बनाए हुए हैं, आप इतला भी करें लेकिन कोई अमल नहीं होता। वही जो इस मुल्क के अंदर करप्शन और दूसरी चीजें हैं उसकी वजह से वो निज़ाम ऐसे कैसे चला रहता है। और ये जो बेचारा गरीब मजदूर है वो उसी किसी को 25,000 दिया जा रहा है, किसी को 26,000 दिया जा रहा है। सरकारी आर्डर के बावजूद 37,000 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। और अरकान असम्बली को लाख से 4 लाख और लाख से जो है ना 9 लाख रुपया देने के लिए इनके पास वसाइल भी हैं, इनके पास फंड भी हैं, जबकि जो आम आदमी है उसकी जिंदगी गुजारना एक मुश्किल बना हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्या है? ये एक कानून एक रियासत और 2 कवानीन वाली बात है ना। एक अशरफिया है जो दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, सरमायादार है जो दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, और एक गरीब आदमी है, वर्कर क्लास है, वो मजदूर सरकारी इदारे का हो या प्राइवेट इदारे का हो, उसका अपनी जिंदगी का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हुआ है। इन 37,000 रुपए में वो क्या जिंदगी गुजार सकता है? बहुत मुश्किल है। क्या अपने बच्चों को तलीम दिला सकता है? 50,000 रुपए है वो भी मुश्किल में है, जिसका देखें बिजली का बिल देख लें आप, अगर 30,000 बिजली का बिल आता है तो पीछे बचा 7,000, तो 7,000 में वो क्या खर्च करेगा वो? नहीं, एक और भी आपको बात बताता हूं कि ये सरकारी मुलाजमीन के साल के बाद अगर कोई 10, 12, 15% तनख्वाह में इजाफा करते हैं तो उसके मुकाबले में टैक्स में इतना इजाफा कर दिया जाता है, टैक्स स्लैब को चेंज कर दिया जाता है। जितना इजाफा उसकी तनख्वाह में होता है वो दूसरे तरीके से उसी टैक्स की सूरत में उसकी पॉकेट से निकल जाता है। यानी इस हाथ से देते हैं। ये भी सुनने में आता है कि रेलवे मुलाजमीन जो हैं करप्शन बड़ी करते हैं, वो चीजें बड़ी बेचते हैं रेलवे की जो वर्कशॉप में पड़ी होती हैं। नहीं हसन भाई, उन्होंने एक जो मुलाजम है, मजदूर है, वर्कर है, वो बहुत सारे अफसरों के मतहत काम करता है, उसने क्या करप्शन करनी है? क्या वो कोई वहां वो कोई ज्वेलरी की दुकान है जहां से वो 1-2 तोले जेब में डाल के घर ले गया? क्या ले जा सकता है? ये करप्शन मुलाजम या मजदूर आदमी नहीं कर सकता, करप्शन अफसर करता है, करप्शन बाख्तियार फर्द करता है। और ये वर्कर के पे डालना कि ये करप्शन करते हैं, क्या करप्शन कर सकते हैं? कहते हैं जी आए रोज एहतजाज होता है इनका, इनके मुतालबात हम सुनते भी हैं, मानते भी हैं, सारा कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी रोडों पे होते हैं, फिर भी कहते मानता है? कोई बताए ना, कोई आगे कोई हुक्मरान है, कोई वजीर है, कोई रेल का बड़ा अफसर आगे बताया उसने क्या माना है, क्या दिया है आज तक? कोई अलाउंस दिया हो, कोई बेनिफिट दिया हो, कोई अच्छी रहायश दी हो, कोई अच्छी सहूलत दी हो, कोई अच्छा काम करने का माहौल दिया हो, कोई जॉब सिक्योरिटी दी हो? क्या दिया है? फिर इंसान या वर्कर एहतजाज ना करे, अपना हक मांगने के लिए सदा बुलंद ना करे, सड़क पे ना आए, हुक्मरानों से मुतालबा ना करे, अपने अफसरान और इंजामिया से मुतालबा ना करे, तो क्या करे? वो घुट घुट के मर जाए। देखिए ना, रेलवे में तो भी ग्रुप बने हुए हैं ना, एक ग्रुप बनी, एक कहता है कि जी सब अच्छा है, दूसरा कहता है कि जी सब अच्छा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब अच्छे वाली बात कोई नहीं है। जो सब अच्छा करेगा वो कभी वर्करों की नजर में उसकी कोई इज्जत या एहतराम नहीं होगा, वो इंजामिया का हिस्सा होगा, वो इंजामिया को खुश करने के लिए या अपने चंद जाती मफादात को हासिल करने के लिए ये बात कह दे। लेकिन वहां अक्सरियत जो है ना वो इन हकूक से महरूम है और अपना हक लेने के लिए जदोजहद करने के लिए वो कोशिश करते रहते हैं। एक जो सदर यूनियन का होता है वो आवाज उठाता है, उसको ही दबा दिया जाए, उसको कहेंगे ठीक आप के पास हम कुछ करते हैं आपका, और उनको छोड़ दें आप। तो अक्सर ऐसा होता है, जो लीडर होता है वो साइड पे हो जाता है, ठीक है जी आप करें, मेरा कुछ कर दें, औरों को छोड़ दें। कि आपका भी ऐसा तो नहीं है सीन? देखें, ये जो इस तरह करते हैं वो को मजदूरों के हमदर्द तो नहीं है, वो कोई मजदूरों की खैर के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं। जाती मफाद लेना ये कौन सा कमाल है? कमाल तो ये है कि आप इज्तिमाई जद्दोजहद करें, एक इज्तिमाई काज के लिए कोशिश करें, लोगों को मुनज़्ज़म करें, लोगों के जो हकूक है उनको हासिल करने के लिए जो पुरअमन, जो कानून के दायरे में रह के आपके पास अख्तियार है उसको इस्तेमाल करें और इसको किसी नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश। वैसे जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो ये तो बड़ा अच्छा काम करती है। वैसे रेलवे मुलाजमीन को बोनस दिए जाते हैं, तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, वो तो ये नारा लगाते हैं कि सब अच्छा है हमारे हुकूमत में। तो हसन भाई, नारे में और अमल में बड़ा फ़र्क है। बताएं कहाँ कोई बोनस दिया गया है, कहाँ उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं? मैंने तो आपको 2-3 दफ़ा ये बात कही है कि सबसे कम तनख्वाहें रेल के मुलाजम की हैं, सबसे कम सहूलतें जो हैं वो रेल के मुलाजम की हैं।
आप अगर रेल के अदारे में जाके देखें तो वहां काम करने के कोई हालात नहीं है। अगर आप उनकी रहायश गाहों को देखें तो उसमें रहने के कोई हालात नहीं है। अगर उनको तो इस वक्त पेंशन वालों को पेंशन नहीं मिल रही, ग्रेजुटी वालों को ग्रेजुटी नहीं मिल रही, रेल के मुलाजम को वक्त पे तनख्वाह नहीं मिल रही। सर वो ठीक है, जैसे आपने जिक्र किया कि इतने करोड़ों रुपए जो इजाफा हुआ है, सॉरी ये जो कमाए हैं रेलवे ने, वो फिर कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें ना फिर आप लोग। फिर ये रेलवे इंतजामिया के दावे हैं और ये बात तो दुरुस्त है कि ये ना जाने ये कहाँ जाते हैं, किनकी जेबों में जाते हैं और कहाँ इस्तेमाल होते हैं। रेलवे के वर्कर को तो इसमें से कुछ नहीं मिलता। पाकिस्तान के जितने भी वर्कर हैं, और आपने कॉल भी दी होगी, मेरे दी है कॉल के नहीं दी अभी तक? कॉल तो हम पूरी मुसलसल इसकी जद्दोजहद कर रहे हैं एक अरसे से कि आप एहतजाज में शरीक हों। अब सबसे पहला एहतजाज कहाँ पे होगा, कराची या फिर लाहौर में? ये एहतजाज अभी हमने हमारी जो पूरी एक टीम है उन्होंने पिछले दिनों इस पे एक मीटिंग भी की है और पूरे लाहौर पाकिस्तान में इसके मुख्तलिफ एहतजाज के प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं। और इस वक्त तो जरूरत है कि रेल के पूरे तमाम मुलाजमीन को इकट्ठा किया जाए और एक बड़ी ताकत पैदा की जाए ताकि एक बड़ी कश्मकश की तरफ आगे। क्या समझते हैं ये ताकत बनेगी? इंशाल्लाह ताला जरूर बनेगी। और ताकत का जो मुजाहरा कामयाब होगा आगे जाके इंशाल्लाह। जब इत्तेहाद होता है तो उसमें बरकत होती है। जब आप बेलौस जदोजहद करते हैं तो उसका नतीजा भी बेहतर निकलता है। और मुझे पूरा उम्मीद और यकीन है कि जब रेल के लोग खड़े होंगे, एक जदोजहद करेंगे, अपने हक के लिए आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उनको हक जरूर मिलेगा। चौधरी साहब, अब ये ट्रेंड बन चुका है, कोई भी अपनी आवाज़ उठाने के लिए एहतजाज करता है अपने हक के लिए तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। आपके सामने जो हालात चल रहे हैं इस टाइम, तो आप लोगों ने एक कॉल दी हुई है और यकजा होने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो गिरफ्तारियां फिर होंगी, फिर ये लाठी चार्ज होगा फिर। ये इसके दो पहलू हैं। इस वक्त तो मौजूदा हुकूमत की जो एक आमराना सोच है, हर चीज को दबा के रखना और दबा के रख के हर तबके की आवाज को दबाने की जो उनकी पॉलिसी है वो अपनी जगह पे है। लेकिन जब आप जदोजहद करते हैं, एक बड़े मकसद के लिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर ये गिरफ्तारियां, ये पर्चे, ये कुर्बानियां, ये तो फिर उसका हिस्सा है। जो लोग किसी बड़े मकसद के लिए आगे बढ़ते हैं उन्हें इन चीजों से तो ना घबराना चाहिए, ना डरना चाहिए, ना इसको अपनी जदोजहद को कमजोर भी नहीं करना चाहिए। पिंडी में कौन लीड कर रहा है? पिंडी में हमारे जो वहाँ पे मुख्तलिफ जिम्मेदारान हैं, हमारी जो वर्कशॉप्स हैं उसके अंदर भी हमारी टीम मौजूद है। जो वहाँ दूसरा एक शोबा ओपन लाइन है वहाँ भी हमारी टीम मौजूद है। सब लोग मिलके इस पे जदोजहद करते रहते हैं। कराची में भी ऐसे ही हो रहा है? कराची में भी ऐसे ही होता है। अच्छा, आए रोज जो ट्रेन है हादसे का शिकार होती है, क्या ये जानबूझकर हादसा का शिकार बनाते हैं या फिर इसको क्या सीन है, कोई पैसा कमाते हैं या गाड़ी गिर गई है और इतना पैसा कमा लिया, अब इधर लग गया उधर लग गया? इसको पूरी बात करेंगे। जो साहब ब्रेक का टाइम है, नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash.
Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea, बहुत बढ़िया. The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी रेलवे के जो है ट्रेन जो है रेलवे की ट्रेन है वो आए रोज हादसों का शिकार होती है। जो साहब ये हादसा खुद करवाया जाता है या फिर इत्तफाकन हो ही जाता है? ऐसी तो बात नहीं है खुद करवाने वाली। अल्लाह ना करे कि कोई खुद करवाने वाला कोई ऐसा सीन हो। ये इसकी जो पटरी की हालत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है, वो ठीक ना होने की वजह से ऐसा होता है। जिस तरीके से इसको मेंटेन, इस ट्रैक को मेंटेन किया जाना चाहिए, जिस तरीके से गाड़ियों को मेंटेन किया जाना चाहिए, उस तरीके से ये सारा कुछ होता नहीं, जिसकी वजह से ये कोई इस तरह का हादसा पेश आता है। क्योंकि ये इसको तकरीबन 100 साल हो चुके हैं इस ट्रैक को बिछे, और कई साल हो चुके हैं इन गाड़ियों को, बोगियों को, इंजनों को बने हुए। लेकिन जिस तरीके से इनको ठीक करना चाहिए, इन पर तवज्जो देनी चाहिए। तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं ठीक करते? आए रोज हादसा होता है, इतना लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। तो उससे अच्छा यही है कि एक नई चीज को मुतारफ करवाया जाए ताकि ये जो हादसा जो होते हैं आए रोज उससे बचा जा सके। देखिए, इसकी वजूहात में माली बहरान भी है और उसके साथ साथ नाअहली और करप्शन भी इसमें सरेदस्त आती है, जिस वजह से ये खराबियां पैदा होती हैं और फिर कोई ना कोई हादसे का। ठीक है ना, करोड़ों रुपए तो कमाते ही हैं ना। फिर अगर थोड़ा सा अगर 3 करोड़ कमा भी लिया तो 1 करोड़ लगा दें तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, या 2 करोड़ लगा दें। ये जो कमाई वाली बात है ना, ये अब इसी साल में मौजूदा जो रेल की इंतजामिया है उसने ये फिगर दिए हैं। इससे पिछले कई सालों से तो जब सैलाब आया था, सैलाब में कई सारी चीज़ें नुकसान का सबब हुई थी, पटरी खासी ख़राब हुई थी, ट्रैक ख़राब हुआ था, तो उसकी वजह से तो ये इसको ठीक ही नहीं किया जा सका। वसाइल नहीं थे, हुकूमत ने को वसाइल उसको ठीक करने के लिए दिए नहीं, और वो सारी वजूहात थी जो फिर हादसे का सबब। तो साहब, इतने बड़े बड़े गिराज मैंने देखे हैं मुगलपुरा वाले साइड पे बनाए हुए हैं और काफ़ी ट्रेनें भी वहाँ पे खड़ी हुई हैं, उसकी हिफाजत क्यों नहीं की जाती है? ऐसी गाड़ी मैंने देखी है वहाँ पे खड़े होकर उनको जंग लग गई है, ठीक है, ठीक क्यों नहीं किया जाता उनको? यही वो बुनियादी सवाल है जो आपने किया है। ये सारा काम तो अफसरान ने करना है। ये सारा काम तो जो बड़े बड़े दफातर में बैठे बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने करना है। उन्होंने इसकी कोई प्लानिंग करनी है, उन्होंने इसकी कोई मनसूबाबंदी करनी है, उन्होंने इस असासा को बचाना है, इसको बेहतर करना है। इसमें रेल का जो वर्कर है वो बेचारा तो उसको जो ड्यूटी देंगे, जो काम उसके लगाएंगे वो कर लेगा, ड्यूटी भी पूरी कर लेगा, काम भी पूरा कर लेगा। लेकिन अगर अफसरान इस पर तवज्जो ही ना दें और ये तबाह होता रहे या बर्बाद होता रहे, तो फिर उसकी तबाही और बर्बादी की शक्ल तो खसारे में, नुकसान में, हादसात में सामने आनी है ना। तो इसलिए मैंने एक बोगी देखी, काफ़ी सालों से मैं वहाँ से गुजरता रहा हूँ, तो मैंने देखा है, मैंने उसकी कोई ना कोई चीज़ गायब होती है। निशाई नीचे पड़े होते हैं, वो उसको तोड़ रहे होते हैं और जाके बेच रहे होते हैं।
कोई चेक बैलेंस नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो फिर खसारा तो होना ही है। फिर देखें, ये नशइयों की जो बात आप कर रहे हैं ना, ये तो चले हमारे एक मुआशरे का ड्रॉबैक है। ये जो हमारे मेरा तल्लक वैसे रेलवे वर्कशॉप्स की यूनियन से है, तो वहाँ गाड़ियाँ आती हैं ठीक होने के लिए, बोगियाँ आती हैं ठीक होने के लिए, रिपेयर होने के लिए, उनको बेहतर करके दोबारा ट्रैक पे चढ़ाने के लिए। उसके लिए मटेरियल दरकार होता है। जो चीज़ ख़राब है, जो चीज़ टूटी हुई है, जो चीज़ रिप्लेस करनी है, वो मटेरियल ही नहीं है। अफसरान ने मटेरियल देना है, वो देने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने जो है ना रिप्लेस करनी है ना कोई चीज, हाँ, तो दूसरे किसी डब्बे से उतार के उस पर लगा देंगे, तो वो फिर खड़ा हो जाएगा। वो तो खड़ा होगा, लेकिन वो भी जो चीज रिप्लेस की जाएगी वो टूटी फूटी होगी, वो भी अपनी मियाद पूरी कर चुकी होगी। जब इस तरीके से गाड़ी को तैयार किया जाए, रैक को तैयार किया जाए, तो उसका नतीजा क्या निकलना है? हम नशइयों वाली बात करते हैं। मैं कहता हूँ ये बकायदा हमारे अफसरान को इस तरीके से कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों हैदराबाद गया, वहाँ भी वर्कशॉप है, तो वहाँ लोगों से मुलाकात हुई, वहाँ के जो अफसर हैं उनसे भी मुलाकात हुई। तो वहाँ पता चलता है कि वो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, छोटी मोटी, कोई राड चाहिए, कोई इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो वहाँ मुलाजमीन आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदा इकट्ठा करके वो चीज़ें खरीदते हैं और फिर वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। अच्छा जी। ये कैसी, यानी कि एक वैसे बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। मैं इसका आपके सामने कह रहा हूँ, चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ। और यही हालत जो है ना वो लाहौर मुगलपुरा की शॉपों के अंदर भी है। क्या कहाँ जाएं? मुलाजिम बेचारे का, वर्कर का क्या कसूर है? इसको किसने देखना है? जो अफसर है उसने देखना है, बिल्कुल। जो सरबराह है उसने देखना है, जो उससे ऊपर है उसने देखना, जो उससे ऊपर अफसर है उसने देखना। मगर जो अफसर बैठे हुए हैं उनकी आंखों तो पट्टी है, नजर कुछ नहीं आ रहा, सोए हुए हैं वो तो। पट्टी है या उनका अपना एक टारगेट है या उनका अपना एक मफाद है, वो उसके साथ अपने बस आगे चले जा रहे हैं। पीछे क्या हो रहा है, हालात क्या बने हुए हैं, उस पे वो या करना नहीं चाहते या कर सकते नहीं है। दोनों में से कोई एक बात तो है ना। बिल्कुल है, या करना नहीं चाहते या कर नहीं सकते। वैसे पाकिस्तान रेलवे किस गवर्नमेंट में खुशहाल था? ये गवर्नमेंटों ने इसका बेड़ा गर्क किया है। सियासी मुदाखलत ने ही रेल का बेड़ा गर्क किया है। सच्ची जो बात है, सियासी मुदाखलत और ब्यूरोक्रेसी की। सियासी मुदाखलत कैसी हुई फिर रेलवे में? जब आप, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, जब आप एक ऐसे मिनिस्टर को लगा देंगे जो खुद ट्रांसपोर्टर होगा, एक ऐसा बोर्ड बना देंगे जिसमें अक्सरियत ट्रांसपोर्टरों की होगी, तो वो ट्रांसपोर्टर अपना दिफा करेंगे ना। बिल्कुल, पॉलिसियां सब ऐसी बनाएंगी ना जिससे उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जो है ना वो तरक्की करे। और रेल जो जिसके दो शोबे हैं, एक है आवाम को सहूलत देने वाला, ये गाड़ी चलाने वाला, दूसरा है तरसील का, ये जो सामान को माल गाड़ी जिसको हम कहते हैं, उससे प्रॉफिट है मुमकिन है, उससे प्रॉफिट मुमकिन है। ये जो ट्रेन चलती है इससे तो प्रॉफिट शायद मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में नहीं है, ये तो एक रफायामा के लिए अदारा है ना। तो जब आप माल गाड़ी को ही ना चलाएं, उसके रूट्स ही ना बनाएं, उसका बेहतर सिस्टम ही ना बनाएं, तो वो सारा तो जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा और रेल के पास क्या बचेगा? तो जब रेल के पास कुछ नहीं बचेगा तो फिर रेल हसारे में जाएगी। जब हसारा होगा तो तबाही होगी, जब तबाही होगी तो आखिर वो बहाना बन जाएगा कि जिसको बंद कर दें। तो साहब ये भी तो ऐलान किया गया था ना कि जी अब जो रेलवे जो है इसको हम बिजली के ऊपर चलाएंगे और तेज गाम हो गई है और जो सफर कम हो जाएगा। क्या है सच्ची खबर ये वाली? ये सब खाम ख्यालियाँ हैं। रेल के जो बिजली घर थे वो बंद हो गए हैं, रेल की जो फर्नेसें थी वो सही काम नहीं कर रही, और ये इसको बिजली पे चलाएंगे और इसको 120 की स्पीड से ऊपर और 200 की स्पीड की तरफ ले जाएंगे। इसके लिए एक बहुत बड़े मंसूबे की और बहुत सारे वसाइल की ज़रूरत है। पूरे एक नए ट्रैक को नए तरीके से बिछाने और उसके ऊपर फिर एक नए अंदाज के अच्छे इंजन और फिर अच्छी गाड़ियां दरकार हैं। फर्ज करें अगर हो जाता है तो मुमकिन है वैसे चल सकेंगी पाकिस्तान में? क्यों नहीं, पाकिस्तान को भी पूरी दुनिया के साथ मुकाबला करना चाहिए। दुनिया की जो तरक्की हो रही है वो हमारा पाकिस्तानियों का भी हक है, ये तो हमारी ख्वाहिश भी है, ज़रूरत भी है। अल्लाह करे कि एक वक्त ऐसा आए कि ये रेल तरक्की, पहले रेल बच जाए फिर उसके बाद रेल तरक्की करे और फिर जैसे आप कह रहे हैं
कि ये बड़ी स्पीड में चले और अच्छी गाड़ियों में चले। मैंने बाहर की दुनिया में सफर किया है, वहाँ ट्रेनें देख के और वहाँ उनकी स्पीड देख के रश्क तो आता है, ख्वाहिश भी पैदा होती है दिल में कि भाई अल्लाह करे कि पाकिस्तान का की रेल और यहाँ की पटरी और यहाँ की बोगियाँ और यहाँ की वर्कशॉपें और यहाँ उनकी स्पीड जो है वो उसी नौयत की हो। तो सब ये भी तो सुनने में आया था कि ख्वाजा साद रफ़ीक जब मिनिस्टर थे रेलवे के, तो उस टाइम रेलवे ने बड़ी तरक्की की है और बड़ा मुनाफा कमाया था। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पिछले अगर हम 15-20 साल का मुवाजना करें, कई मिनिस्टर आए हैं, कई हुकूमतें आई हैं, तो उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब एक बेहतर मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है। उन्होंने रेल को ठीक करने के हवाले से और अच्छे अफसरान को ड्यूटी देने के हवाले से एक अच्छी अपनी पॉलिसी बनाई थी। लेकिन मुझे उनसे भी एक अफसोस और गिला है कि सारी चीज़ों के बावजूद उन्होंने रेल के वर्कर को कुछ नहीं दिया। ये गिला मैंने पहले भी किया है। वो तो जब भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या कोई जलसे में तकरीर करते थे, सबसे पहला जिक्र जो करते थे वो रेलवे का करते थे, और दूसरा जो जिक्र करते थे वो यूनियन की जो वर्कर होते थे उनका करते थे। हम बोनस दे रहे हैं, उनकी तनख्वाहें अच्छी हैं और अच्छा जी रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। क्या वो सारा झूठ था फिर? नहीं, वो सारा कुछ वो समझते थे। रेल के मजदूर के हालात हैं, वो लाहौर के रहने वाले थे, सारी चीज़ों को वो जानते थे। गालबन उनका हल्का भी रेल की आबादियों के अंदर ही आता था। तो लेकिन वो अपने पूरे टेन्योर में रेल के मजदूर को डायरेक्टली कुछ दे नहीं सके। रेल की बेहतरी के लिए उन्होंने काम जरूर किया, लेकिन रेल के मजदूर को वो कुछ दे नहीं सके। ठीक है, को उसकी तरह क्या सोलहात दी गई उस टाइम जब ख्वाजा साद रफ़ीक थे रेलवे के मिनिस्टर? मैंने बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं कि उन्होंने रेल को ठीक करने के लिए, रेल से करप्शन को खत्म करने के लिए, कहने का मकसद है कि उस टाइम जो हादसा कम हो गए थे, हादसा कम हो गए, रेल में करप्शन पे कुछ ना कुछ काबू पाया गया, रेल के अच्छे अफसरों को उन्होंने लगाया और उनको पूरा मौका दिया, रेल को खसारे से निकालने के लिए उन्होंने कोशिश की, रेल को उन्होंने थोड़ा सा और अंदाज में अपग्रेड करने के हवाले से वो सोचते भी रहे, उस पर अमल भी करते रहे, अफसरान को मौका भी देते रहे। लेकिन टू द पॉइंट बात यह है कि वर्कर्स को जैसे उनकी तनख्वाह में इजाफा है या उनको कोई ऐसी चीज वो नहीं दे सके। ठीक है, मुमकिन है कि उनकी हुकूमत का कहा जा रहा है, ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया।
ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती, आपका मंशूर क्या है। किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आगे में। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात हो रही थी ख्वाजा साद रफ़ीक की, अच्छे हालात थे रेलवे के। जो साहब, जब शेख रशीद साहब आए उस टाइम के हालात थे रेलवे के? क्या बताएं आपको, आजम स्वाति साहब भी आए थे। तो मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। शेख रशीद साहब की आपने बात की है, उन्होंने हालांकि वो इससे पहले भी कई दफ़ा मिनिस्टर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानते थे, लेकिन उन्होंने भी कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया कि जिसमें उनकी तारीफ की जाए। बल्कि एक बात करता हूं कि ये जो हमारे पिछले को 2-3 साल से तनहाओं का जो बुहरान है, क्राइसिस है, वक्त पे तनहाई नहीं मिलती और तनहाई देने के लिए पैसे नहीं है, ये भी शेख रशीद साहब का कारनामा है कि वो इस तरह का नहीं। वर्कर तो वैसे खुश था वैसे शेख रशीद से, बड़ी जफ्फियां डाली गई शेख रशीद के साथ, भंगड़े भी डाले गए। अब आप लोग कहते हैं कि हालात नहीं थे। किसी सरबराह का आना, किसी मिनिस्टर का आना, किसी अफसर का आना, उसको वेलकम करना या उसके साथ कोई उसके अच्छे तरीके से डील करने का मतलब ये तो नहीं है कि वो 1 लाख या 70 या 60 हज़ार मजदूर खुश है। तो जो चंद लोग अगर खुश हैं, बाकी तो बेचारे परेशान हैं और उसी दलदल में आज तक भी फंसे हुए हैं। यानी कि शेख रशीद ने बेड़ा गर्क किया रेलवे का, ऐसी क्या? बेड़ा गर्क करने में उन्होंने अपना रोल अदा किया। साथ ही स्वाति भी साथ। पहले स्वाति साहब तो उससे ज्यादा तबाही मचा के गए। कितनी तबाही मचाई उन्होंने? उसका नजर आ रहा है तबाही मची पड़ी है। हादसात का भी आपने जिक्र किया है, तनहाओं का मैंने जिक्र किया है, इसके बंद होने और प्राइवेट होने का ये तबाही है। यानी कि खुलकर करप्शन की गई। करप्शन की तो एक लंबी दास्तानें हैं। आपने लोगों को नवाजने के हवाले से और उनको सारा कुछ करने के हवाले से बेशुमार दास्तानें हैं, लेकिन मेरा अपना एक अंदाज है, मैं इस डर्टी गेम की तरफ जाता नहीं हूँ। अच्छा तो साहब, ये जो ओवरऑल वर्कर यूनियन जो है आपकी यूनियन बनी हुई है, उनकी क्या सूरत हाल है? देखें, पाकिस्तान में तकरीबन कोई 7.5 करोड़ लोग वर्कर हैं माशाल्लाह। 7.5 करोड़ 25 करोड़ की आबादी में, और इसमें सिर्फ जो है ना वो 2-4% लोग भी जो है ना ऑर्गेनाइज नहीं है। वो कैसे? मसलन ये जो यूनियनाइज सिस्टम है, ट्रेड यूनियन है, इसमें तकरीबन 1% लोगों को भी इसका हिस्सा नहीं है। और जो सहूलतें हैं, सोशल सिक्योरिटी है, ओल्ड एज बेनिफिट है, इस तरह के जो सहूलतें हैं वो इन लोगों को भी मैसर नहीं है। यानी 7 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों क्या, बल्कि शायद चंद लाख लोगों को भी ये सहूलतें मैसर नहीं है। और इन 7.5 करोड़ में से 85% वर्कर वो हैं जो ऑर्गेनाइज ही नहीं है। मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन की फील्ड का वर्कर है, ये मंडियों के अंदर काम करने वाले मजदूर हैं, ये जो है ना आज जो नया दौर है, ये जो फूड पांडा का वर्कर है, ये जो घरों में काम करने वाले मुलाजमीन हैं, ये उसके साथ साथ ये जब एक नया दौर आया है ऑनलाइन काम करने, ये भी तो वर्कर हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम करने वाले लोग हैं, ये किसी हुकूमती इदारे का हिस्सा नहीं है।
इन्हें कहीं से कोई सोशल सिक्योरिटी की सहूलत मैसर नहीं है, इन्हें कहीं से कोई वेलफेयर फंड की सहूलत मैसर नहीं है, इन्हें कहीं कोई ऐसी जो हुकूमत पॉलिसियां देती है जहेज की या एजुकेशन की, वो इनको हासिल नहीं है। टैक्स तो फिर भी हम पे कर ही रहे हैं ना, फिर भी पे कर रहे हैं टैक्स, फिर भी इन्होंने देना है। जो हुकूमत ने ऐलान कर देना इन्होंने देना है। देना क्या है? इनकी तनख्वाह में से कट जाना है। ये वो मजलूम तबका है कि सरमायादार टैक्स दे ना दे उसको पकड़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, सनतकार टैक्स दे ना दे उसको पकड़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये जो मुलाजम है, चाहे वो सरकारी मुलाजम है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का मुलाजम है, चाहे वो ऑर्गेनाइज है या ऑर्गेनाइज नहीं है, उसको सहूलत कोई हासिल है या नहीं है, उसकी सैलरी में से जो है ना वो टैक्स कट जाना है। बिल्कुल। यानी ये कहा जाए। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान का वर्कर को अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना, अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करना, अपनी ज़रूरियात को पूरा करना, उसके लिए एक नामुमकिन बना हुआ है। आने वाले वक्त में क्या बेहतरी आ सकती है? बेहतरी की तो तवक्को हर वक्त रहनी चाहिए। हमें अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा, यहाँ के लोगों के हालात बेहतर होंगे, बेहतरी जरूर आएगी, इसमें तो कोई दूसरी वैसे उम्मीद किस पे ऊपर है कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी या इसमें बेहतरी आ सकेगी पाकिस्तान रेलवे में? क्या समझते हैं? क्या गवर्नमेंट आएगी तो तभी है ना, जब गवर्नमेंट लाई जाएगी तो फिर क्या तब्दीली आनी है या बेहतरी आनी है? तो कह रहे हैं कि इलेक्शन जीते हमने तो आए हैं। नहीं, ये आप 45 और 47 की बहस में मुझे ना ले जाएं। ये सारी दुनिया जानती है, अब तो बच्चे बच्चे को भी इसका पता है कौन आया है और कौन लाया गया है। ये तो अब कोई नई बात नहीं है। तो सर साहब, इस टाइम जो मिनिस्टर रेलवे है कैसा काम कर रहा है? एहसन भाई है ही कोई नहीं। वो कैसे? ऐसा अदारा जिसका मिनिस्टर ही कोई नहीं, तो चल कैसे रहा है फिर? बस चल रहा है, अल्लाह चला रहा है। अल्लाह क्या चला रहा है? चलाने वाले चला रहे हैं। जिसका बाप भी नहीं है फिर कैसे चल रहा है? तो सरबराह ही नहीं है। ठीक है, एक रेलवे मिनिस्ट्री है इस्लामाबाद में, अगर आप वहां जाकर देखें, उनकी शान शौकत देखें, उनके बड़े बड़े दफातर देखें, उनके बड़े बड़े अफसरों की पूरी वहां जफर फौज मौजूद है, वो वहां बैठ के इसको प्राइवेट करने के मंसूबे बना रहे हैं, वो इसको कंपनियों में बदलने के मंसूबे बना रहे हैं। हुकूमत ने इसको असेंशियल सर्विस से निकाल दिया है ताकि इसको बेचने में आसानी पैदा हो, इसको खत्म करने के लिए कोई रुकावट ना हो। वो इस पे काम कर रहे हैं, वो इस पे तवज्जो दे रहे हैं। वहां बैठ के यहाँ लाहौर में जो हेडक्वार्टर है वहां के अफसरों को हिदायत देते हैं, वो उन हिदायत पे अमल करते हैं। तो फिर हम लोग फिर सफर कैसे करेंगे? आप तो चलो सफर कर लेते हैं, कहीं जाना हो, मियाँ वाली जाना हो, फैसलाबाद जाना हो, सरगोदा जाना हो, 500 रुपये में तक पहुंच जाते हैं हम लोग। जब प्राइवेट हो जाएगी तो वो तो फिर 2000-3000 किराया होगा, अपनी मर्जी का किराया लगाएंगे वो तो। जो बिजली के बिलों के हालात हैं, जो पेट्रोल की कीमतों के हालात हैं, जो सुई गैस की कीमतों के हालात हैं, जिस तरीके से उसमें इजाफा हो रहा है, ये जो रेल अगर प्राइवेट हाथों में होगी तो इसमें भी सैकड़ों के हिसाब से और कई गुना के हिसाब से इजाफा होगा, जो आम के लिए वो बाले जान होगा। क्या समझते हैं, जब तक ये गवर्नमेंट है, लग नहीं रहा कि ये गवर्नमेंट चल पाएगी? कि आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट चल पाएगी? अगर गवर्नमेंट खत्म हो जाती है तो फिर प्राइवेट तो बच जाएगा आप लोगों का रोजगार। तो चल रही है, चलाने वाले चला रहे हैं, जब तक चलाना चाहेंगे वो चलती रहेगी। जब इसको रोकना चाहेंगे तो पिछले 40 सालों में देखें, किसी ने 32 महीने किए हैं, किसी ने 36 महीने किए हैं, किसी भी जमहूरी हुकूमत ने शायद 5 साल पूरे नहीं किए। ये हमारा एक सियासी अलमिया तो है, एक हमारे और आपके सामने सारा कुछ। आपके साथ इतने वर्कर हैं, पूरे पाकिस्तान को आप लीड कर रहे हैं, तो किसको आप सपोर्ट करते हैं, कौन सी पार्टी को? देखिए, मेरा अपना ज़ाती तल्लक तो जमात इस्लामी से है, तो मैं तो एक नज़रिए और एक काज के लिए काम करता हूँ और उसी के लिए करते रहते हैं। लोगों को भी उसके साथ चलने और उसका साथ देने और उसको समझने के लिए कोशिश करते हैं। क्या समझते हैं, जमात इस्लामी अगर इक़्तिदार में आती है और रेलवे का जो निज़ाम इस टाइम गड़बड़ है उसको ठीक कर पाएगी? रेलवे तो दूर की बात है, इस मुल्क को जमात इस्लामी ठीक कर सकती है। इस मुल्क को तरक्की की राह पे जमात इस्लामी ले जा सकती है। जमात इस्लामी के पास एक अमानतदार, दयानतदार क़यादत मौजूद है, एक बासलाहियत क़यादत मौजूद है। जमात इस्लामी करप्शन से कोसों मील दूर है। करप्शन ही इन इदारों की तबाही का सबब है। अगर ऐसे लोग इक़्तिदार में आ जाते हैं और इसको लीड करते हैं तो मुझे यकीन है
कि ये पाकिस्तान भी और इसके अदारे भी इस दलदल से निकल सकते हैं। अच्छा, जो है रेलवे स्टेशन है, इसकी मरम्मत क्यों नहीं की जाती, क्या वजह है इसकी? ये तो भूत बंगले का नक्शा पेश करते हैं और जब कहीं इस तरह की बात होती है तो फिर वसाइल की बात ही आड़े आती है कि वसाइल नहीं है, इसके लिए इतना पैसा चाहिए, उसके लिए इतना पैसा चाहिए। बैठने की जगह नहीं होती, और अगर बैठने की जगह मिल भी जाए उसके ऊपर गंदगी इतनी होती है तो बैठने को दिल नहीं करता। जो पानी के जो फिल्टर वहाँ पे लगे हुए हैं, पानी नहीं आता वहाँ पे, खाली नाम के फिल्टर लगाए हुए हैं, सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है दूर दूर से। अब रेलवे को इतना मुर्दे जामना ठहराएं, आप गली मोहल्ले में जाएं तो वो फिल्टर भी बंद हैं, वहाँ भी पानी पीने को नहीं मिलता, वहाँ भी तो हुकूमतें भी मौजूद हैं, वहाँ अदारे भी मौजूद हैं, वहाँ पानी पीने को नहीं मिलता तो आप रेल के सारे सेटअप को कहते हैं फिल्टर ना लगाए ना, फिर सबको कह दें कि अपना पानी खुद ही लेके आए, फिल्टर ना लगाए। चले फिल्टर लगाए, इंशाल्लाह ताला उसमें पानी भी आ जाएगा। कब आएगा पानी? बस दुआ करें कि हालात बेहतर हो तो उसमें पानी भी। लेकिन इतना मुनाफा कमाया रेलवे ने तो पानी तो आना चाहिए ना फिर। हाँ, ये तो आपकी जुबान कह रही है ना कि इतना करोड़ों में मुनाफा कमाया तो फिर पानी तो कम से कम देना चाहिए ना फिर। ये सवाल आपका बजा है कि वो मुनाफा कहाँ है, वो 55 अरब कहाँ है। हाँ। इसकी तलाश में हम भी हैं। जब हमें पता चल गया कि वो 55 अरब कहाँ है, 55 अरब में से कोई लाख रुपए 2 लाख लगा दें तो कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही जाएगा। उसकी तलाश में हम लगे हुए हैं। अगर वो 55 अरब के पता चल गया कि वो किधर है और किधर लगा है तो इंशाल्लाह आपको भी बता देंगे कि वो ये पानी कब रेलवे स्टेशन की बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। ऐसे ही है इंशाल्लाह जरूर कि नहीं आएगी दोबारा? जरूर आएगी। अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे और इस सारे सिस्टम में बेहतरी आएगी। अच्छा तो साहब, लोग कहते हैं कि ये ट्रेन का सफ़र करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है और इंजॉय करते हैं। ट्रेन का टाइम होता है 12 बजे का, आती 2 बजे है, 3 बजे है, लोग बेचारे वेट कर कर के थक जाते हैं। क्या वजह है, लेट की वजह क्या है ट्रेन की? ठीक है, आपकी बात ये वजह है। वैसे तो इसमें खासी पहले से बेहतरी आई है, लेकिन इसका सबब जो है ना वो ट्रैक है। ट्रैक के ऊपर बाज़-औक़ात उस स्पीड से गाड़ी नहीं चलाई जाती, उसको थोड़ा सा अख्तियात के लिए उसकी स्पीड को जब कंट्रोल किया जाता है तो फिर वो ताहीर का सबब बनता है। तो साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, आपने तो साहब की बातें सुनी और इनके एक ही मौक़िफ़ है कि जो प्राइवेट करने जा रहे हैं इदारे को प्राइवेट ना किया जाए। हज़ारों की तादाद में जो मज़दूर हैं रेलवे के वो बेरोज़गार हो जाएंगे। पहले ही मुल्क में इतनी बेरोज़गारी है और हो जाएगी, तो इनको ना करें। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else.
सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड, अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कैम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कैम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। Hi there, I'm Dr. Anand bringing to you another part of my series, Unleashing Your Inner Power with Dr. Anand. Today's topic is about a very, very important subject. It's called happiness. What do you think happiness is? Well, I have studied this from childhood. My name is Anand, which means bliss, which means happiness without any cause. But let's look at some of the antecedents why I've got into this topic. It is a very important topic. If you are happy, you create more. If you are happy, people like you more. If you are happy, you get better job opportunities. If you're happy, you create an aura of positivity all around you. So it's not just for the self. So we look at it from different aspects. I've lived in the West, but I come from the East. In the East, happiness is about self-looking, about self-engineering, about looking within. As in Urdu we say, apne girehban mein jhankna. Look inside yourself. And then you grow as a person, you look after your family, your society, and so on. In the West, it's slightly different. In the West, the individual finds a cause, and then materially, he or she is measured how much money they have, what big house they have, how much they show off and spend. So the views are slightly different. I mean, it's a very general categorization. Not everyone in the East is sitting and doing meditation and compassion and serving, and not everyone in the West is a total materialist. But generally, my experience says that is what is true. So you have to decide which aspect do you want to do. Do you want to just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status? Or do you want to be content and peaceful and happy so that you can help
your own family relations, and the rest of society, and ultimately the country and the whole world. So this topic is very important. I have met several psychiatrists, psychologists, studied a lot, because as you know, my name is Anand. And I was once with a psychiatrist for a very long time, just for a chat. And he actually said to me, you know what you're suffering from? I hadn't gone to get diagnosed. I said, tell me. And he said, you're suffering from hyperthymia. I didn't even know this word. Do you know what hyperthymia means? Always being happy. And I said, so what? If I'm happy, despite all my troubles, if I'm happy and making 10 people happy, what's your problem? So in Western diagnosis, even being happy is an illness. So be careful. If your soul, your ruh, your atma feels good and you're harming nobody, go ahead and do it. And we'll talk later on about the different ways of staying happy, different ways of looking within, different ways of helping others. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs, and it's cold as well. मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें, अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash.
Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea, oh, vadya. The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. Let me tell you a little parable. There was once a man who always complained. He was never happy. He would always find a little fault, a little mistake, a little nooks, as it is called in Urdu. Always, all the time. However, his friends one day took him to a wedding. The food was perfect, the reception was perfect, the lighting was perfect, the couple, everyone was nice. You know what he said in the end? Well, that was good, but things shouldn't be that good. So the point I'm making it's how you look at happiness. You can spend your whole day, make a slight mistake and focus on it, and then the whole day is spoiled. People do say things like, it's one of those days. No, every moment you can decide. So there are people who always moan and groan. The weather is bad, taxes are bad, the world is having a war. Yes, these things are happening, but your duty is to make the world a better place. First, the inner world. I've seen so many people who spent all their lives. As a doctor, I've seen many people who are always anxious, always unhappy, always unconnected with people. And they're on tablet after tablet, sleeping tablet, alcohol, seeing the psychiatrist, seeing this, seeing that. But there are ways of not going into this. For instance, if you sit in a restaurant and watch overweight people, they'll be having potato chips with a lot of sweetening added. They'll be having sweet drinks with lots of sugar in it. So when you see the person, he's an accumulation. Similarly, unhappy people have accumulated, like nutrition for food, for the body. Happiness or unhappiness and the attitude has to do with how you see the world. So some people see the world through dark glasses. Isn't there a famous saying? Some people see the world as the glass is half full, and some people see the world as the glass is half empty. So it's your perception. There is no world except your own perception, how you perceive the world. And there are a lot of people who have lots of accidents, lots of mistakes. They even go into jail ultimately. Because if you're looking at negativity all the time, your brain will get shut down and you'll only see misery. People have even gone and committed suicide. They're so unhappy. They're so miserable. But I'm talking about extreme cases. But think of three of your friends. One is always smiling. He's also got troubles, but he, when he sees you, is happy to see you. Think of someone who's neutral and think of someone who's always miserable. And I have the acid test. When someone phones you and you chat with them, and then when you finish the call, you will realize whether they are energy givers or energy suckers. Energy suckers are miserable people. They are unhappy and they want to make you unhappy. And I'll tell you ways of avoiding this, because if all day I'm sitting with alcoholics, I'll become an alcoholic. If all day I sit with a gambler,
I'll become a gambler. If all day I'm sitting with rich people, I'll aspire to be that. If all day you're sitting with negative people, you become negative. So be careful who you're associating with, because each one of us radiates energy. Negative energy, positive energy. I'm not saying as soon as somebody says anything negative, you walk away. But you will notice that certain people always leave you feeling a bit smaller. They're unhappy people. They're energy suckers. They're people who are there to make everyone unhappy. And as I said, if this goes on, it gets into anxiety, depression, schizophrenia, etc. And I'm telling you from my lifelong experience as a Western medical doctor that if you are all the time thinking negative thoughts, you kill yourself, you cut yourself down all the time. The only person who can really make you change, either for the better or worse, is you yourself, the person you look in the mirror. I once read a book called The Saboteur Within. You know what sabotage is? If there's a machine working, you throw a spanner in the works, it's called. Saboteur is somebody who sabotages something. And do you know what was on front of the book? My friend Matt Hudson wrote the book. There was a mirror. So when you look at the book, you see your own face. So basically, it's about the locus of power. You have the power within to either change yourself, change your habits, change your friends. Be careful with your family, who you mix more with, who you mix less with. I'm not saying just dump people and cut them off your phone book, block them. No, but you don't have to spend all your time with people who make you feel small. That is the point of negativity. And the last episode, I told you why negative people thrive is because negativity is a survival instinct, the hindbrain. And it's because of that newspapers, television, any media, friends, they're all talking negative because it's very attractive to do that. I don't agree with that. There is so much positive things. Otherwise, the world would collapse tomorrow. Yes, there are wars going on. Yes, somebody may have cancer and died yesterday. Yes, I might have irritable bowel. But that isn't all life. Life is much more than just that little part. So it's what you focus on. If you focus with your eyes on misery, you will become miserable. If you look further ahead, maybe there's a way of getting better. Thank you. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She not let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया।
आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। So now let's look at the ways that happiness or being happy could be productive for you. After all, we're not just happy for no reason. Well, when you're happy, you feel satisfied inside. There's a sense of gratitude. You thank God that life is good. Thank God for the bits that are good. You don't have to be unhappy talking about the bits that are not perfect. Life is never perfect. And I certainly am not a perfect person. But I can tell you, when I'm in a good frame of mind, when I'm positive people come to my life. I've time and again noticed that nice people will phone you, give you an opportunity. But if you're miserable, you will slowly cut away any goodness in your life. I hardly read the papers. I don't get any newspapers. On television, I just skim through all the headlines. There's so much news that even if you don't want to, you know exactly how many people were killed where. We have a subterfuge, a huge amount of news which you can't avoid. So don't watch the news morning, noon and night. I'll tell you about myself. When 9/11 happened, I was so hungry for it. I would do my clinic, I come back home, put on the television, watch it. Do the clinic, come back and television, watch it. So in a way, I'm contributing to 9/11 by being participant. I know something happened there and so many people died. Do I need to know exactly what happened? Do I need to taste all the flavor of the people who died falling down? It's very violent. Life is hard enough, so I don't watch any of that. If I'm watching something on YouTube and if there's violence, I just switch off. You know, I'm supposed to be a doctor. I'm quite old. I'm retired. But why should I subject my mind to it? I just cut out. If someone is using foul language, if something is overtly sexual, I avoid it. Because life is difficult enough. So I try to watch something positive. Some people who are inspired by, some people who are very good in music, some people who are very good in yoga, some people who have an alternative view. The other thing is, when you are happy and calm and content, you'll try to watch another person's point of view.
I might have a favorite party. I might come from a certain faith. I might come from a certain country. But let's look at the bits of people who don't like people like me. And then you learn something. No human being is totally mad. I used to teach medical students about diversity, English medical students. And I would say, give me 3 good qualities of Hitler. And they would find it impossible. I said, look, he spoke better German than me. He marched very well and he inspired his country. I'm not justifying Hitler, but even in Hitler, look for something. Do you know that Hitler's sister could not see a fault in him? That is called blind love. So what I'm saying to you is you have a choice. Do you want to see the world as a positive place and grow with it? Or do you want to be another miserable person? Do you know what I call people who just follow others? I call them sheeple. It's a mixture between sheep and people. No, each human being is a leader. Every human being has something at least to teach me. I promise you, you give me the worst person that you think and they have some story to tell me which will inspire me. Every single person. As a doctor, I've really been privy to learning about people, learning about humans. And I did a course on counseling at Durham University. And do you know what I found out most? About Dr. Anand. What my mistakes are, what my weaknesses are, what my blockages are, why I'm shy, why I shouldn't say this, why I suddenly get angry. And over time, you become an observer. So I now observe Dr. Anand from above, like as if I'm a drone watching me. And that's a very nice place to be. Of course, I get irritated by people and angry. We did a conference recently, someone said something and I got angry. But I don't allow it to crush me. What happened was I cracked a joke and dealt with it and talked to him afterwards. So any negative emotion comes, I notice it as an observer, not become subsumed. So if you want to stay happy, just stay above the parapet. Look at the gratitude, look at all the good things God has given you, and you'll be a happier soul, a much more productive soul, a much more liked person, and a leader of humans. And that's why I say, I help you get to the power that you have within inside you. Now let me tell you how happiness has supported me. To come from a different country, India, all the way to the UK, where the temperature is different, the people look different, driving is different, houses are different, food is different, everything is different, and I don't have a single person I know in this country. I had a cousin at one time, but I didn't live with him. So he's just on a phone call, and at that time, you didn't have mobile phones or anything. From that, I realized that I would be happier being a community doctor rather than being in a hospital. Just because people think very highly of hospital doctors, how should I not look after myself? That's the number one. Then my wife and children came to this country, and every 6 months the job would change. And it was very difficult because you're in a different region, a different accent, different specialist, children going to every 6 months. But because I was very pleasant and happy, I was chosen to be on the vocational training scheme for 2.5 years. So I was with a very good general practitioner who taught me. Then I was doing different hospital jobs. So I have a broader outlook. And then I came back to the same specialist who again gave me a rubber stamp that I'm going to be a good general practitioner. I went to a practice, and I'll tell you the real story. It was a very posh practice, a very upmarket, rich practice in a pure white area. But the last English doctor had committed suicide. And I thought, only I can commit my suicide. I went in, and because of my positive attitude and my happiness and my directly looking in the eyes of the senior partners, I got the job, and I was there for about 35 years. And it is not common in England to live upstairs and work downstairs, but I did it. Only 4 people knocked on my door. So what? In 35 years. Most doctors live far away, then they spend time driving into work, there's snow, there's ice. I just walk next door and work. Can you imagine? I was saying 60 minutes at least every single day from commuting. And then I introduced complementary therapies into my practice, which is again something most doctors don't do. Less than 1% would even mention it. By that I mean homeopathy, acupuncture, Reiki, Unani, Ayurvedic medicine, spiritual healing, those kind of things. I used to actually have therapists, and I went to Newcastle University and actually taught it in the university through them. Only because I'm happy and confident. Then I did a research on doctors, that doctors who try to understand their patient's mind, psychological medicine, are good doctors and they have better job satisfaction. Again, that was the first. So I've done so many new things,
only because I'm happy. I went on radio for 15 years and now I'm in front of you on a satellite channel. About 3 months ago, I saw someone flying a drone. I've got 3 drones at home and I learn about drones every day. So if you're learning and reaching out to people, you create an aura of happiness. And from my own example, you can see that I haven't stopped. And despite being a retired doctor for the last 12 years, I'm still a happy bunny, as they say in English. I'm a happy Geordie. I live in Newcastle. This is my home. I don't say when I go home. Of course I go to India. I can't forget India, but I don't live in India. I live here completely with my own values, which may not be exactly the same as the man on the street, but I'm happy and therefore I'm successful. That's all for today. See you next week, same time on South Asia Global. It's me, Jia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं। गरीब आवाम उन फलों को नहीं खरीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए। बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ 1 गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं, जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं
ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash.
Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास, जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल, जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना खोली जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि ये बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया।
आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है। पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड, अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कैम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कैम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलाची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा।
Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें। अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। Hello and welcome to Business ABC.
But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea, oh, vadya. The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम अज़ कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सीट बाइट्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट वजीहा खालिद। इस वक्त हम मौजूद है लिबर्टी मार्केट, जहां लोग अपने प्यारों के साथ खाने पीने को और शॉपिंग को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए लोगों से करते हैं बातें और जानते हैं कि वो आज के दिन को किस तरह से एंजॉय करें। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। आपका नाम? उर्वा। उर्वा, इतनी प्यारी भी होती है उर्वा। अच्छा, आप किसके साथ आई हैं? मम्मा के साथ, पापा के साथ, या दोनों के साथ? मामा। मम्मा के साथ। क्या खाने, कुछ खाने भी नहीं है, शॉपिंग करने? खाने पीने। क्या खाया है? मेरे लिए आइसक्रीम नहीं ली? आपको नहीं पता था कि मैं आई हूँ तो मेरे लिए भी आइसक्रीम लेनी चाहिए थी ना? तो केली के लिए इंजॉय कर रही है? नहीं, मेरा भाई भी खा रहा है। अच्छा, भाई खा रहा है, बहुत है। तो क्या क्या खाया अभी तक? बस आइसक्रीम। और क्या खाने का इरादा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। अम्मा के हाथ का बना हुआ क्या पसंद करती है? हाँ? मम्मा के हाथ का बना हुआ क्या पसंद करती है? निहारी। निहारी। अच्छा, कभी मम्मा के साथ हेल्प की है किचन में? और तंग कितनी बार की है? किचन में जब गंद मचा के चल जाती है, अम्मा डांटती नहीं? थोड़ा सा। बस थोड़ा सा? क्यों? थोड़ा सा तो बनता ही नहीं है, ज़्यादा बनता है ना। जब डांट पड़नी चाहिए, जब खिला भी चाहिए तो फिर तो ज़्यादा डांट पड़नी चाहिए। क्योंकि मैं इतना किचन में जाती ही नहीं हूँ, इसीलिए कम जाएंगे, कम खिला जाएंगे और कम डांट पड़ेगी। कौन सी क्लास में? 4 क्लास में है। तो क्या आज छुट्टी है? जी। छुट्टी को एंजॉय करने? तो पापा को क्यों नहीं? बाबा घर पे थे, वो अपनी फार्म गए हुए थे अभी। तो आप लोग इधर आ गए? हाँ। पापा गए हैं, निकलो। तो आई किसके साथ है? मम्मा के साथ? कौन छोड़ के गया? मम्मा के साथ। कौन छोड़ के गया? किसके साथ आई हैं? मम्मा भी आई हुई हैं। तो मम्मा कहाँ है आपकी? पीछे। मम्मा पीछे छोड़ गई? नहीं। फास्ट फूड या देसी, क्या पसंद करते? फास्ट फूड वाले बच्चे है ना। क्या पसंद करते फास्ट फूड में? ज़्यादा तो मुझे शवरमा और वो पसंद है फास्ट फूड में। शवरमा और वो पसंद है? वो क्या होता है? मतलब बर्गर वैसे। हिंदी शवरमा और वो पसंद है। अच्छा, कोई पोएम सुनो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये भी है, above the sky like a diamond in the sky। ये भी पूरी नहीं आती। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, ठीक हो जी। आपका नाम? हसनैन। हसनैन, क्या करते हैं? बारबेक्यू। कैसे आ रहा है आपका काम? ज़बरदस्त है। गर्मियों में भी ज़बरदस्त था? हाँ, इधर शौक नवाज शरीफ ने ऐलान किया था मुर्गी खाना है, कोई और चीज़ नहीं खाना। तो ज़बरदस्त जा रहा है। हाँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा काम जा रहा है। अच्छा, टिक्कों को छोड़ के मार्केट में और क्या आपको पसंद? ज़्यादा इधर दुपट्टे मशहूर हैं। दुपट्टे? हाँ। उसकी वजह? फैमिली कस्टमर आते हैं क्योंकि वो दुपट्टा गली काफ़ी इधर मशहूर है और पीछे जो है मार्केट लिबर्टी प्लाजा, उसमें ज़्यादा दुपट्टे बिकते हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि अगर आप हीरो होते तो कौन सी हीरोइन के साथ आप काम करना पसंद करते हैं? यानी कौन सी हीरोइन आपको बहुत पसंद है? कतरीना कैफ। कौन सी मूवी से इंस्पायर हो के आपको लगा कि कतरीना कैफ के साथ आप कर सकते हैं? कतरीना कैफ माशाल्लाह खूब। नहीं, कौन सी मूवी उसकी लास्ट टाइम जो मतलब देखी आपको ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी? ये आमिर खान की जो फिल्म आई है उसके साथ। उसमें ज़्यादा अच्छी लगी? हाँ, जिसमें वो कमली यार में कमली है, उसमें गाना है। अच्छा, तो यानी आप आमिर खान को निकाल के खुद फिट होना चाहते हैं? नहीं, फिट क्या होना चाहता, मैं खुद शादीशुदा हूँ, मैरिड हूँ। नहीं, मतलब मैं तो नहीं, इस वक्त आप बीवी से बच रहे हैं, लेकिन अगर ऑफर आती है आप कैसे ठुकराते? पहली बात है, बीवी मेरा टच फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है, उसको कोई मसला नहीं है वो देखने में, लेकिन वो मेरे इत्मीनान करती है। आपने इत्मीनान बनाया हुआ? इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर आपकी लाइफ में कोई स्टोरी लिखी जाए तो उस स्टोरी का नाम क्या हो? अब ना मेरे पास इतना पैसा है, ना मैं कोई फिल्म ऐड कर सकता हूँ। नहीं, ना कोई फिल्म ऐड करवानी है, बस सोच रहे, मतलब अगर आप लिखें तो क्या नाम देंगे? बस उसका एंड नहीं होगा, तेरे नाम लिख देता हूँ। अरे वाह, ये किस वजह से, क्या सोच के बोला? जब आप सिलेक्ट ही नहीं होना तो फिर लिखने का क्या फ़ायदा? आपने एम ही बोल। हाँ जी, एम ही बोल। अच्छा, अगर जानवर गाड़ी चला सकते होते तो कौन सा जानवर जो सबसे बुरा ड्राइवर होता आपकी नज़र? जो बुरा ड्राइवर हो? अगर जानवर गाड़ी चला सकते होते तो कौन सा जानवर सबसे बुरा ड्राइवर होता? खोता।
खोता ये, हाँ ये एक्सपेक्टेशन है, कहते हैं ये एक्सपेक्ट किया जा। हाँ बिल्कुल, जो मारने से सीधा चलता है। लेकिन अगर उसे मारोगे तो वो फिर सीधे ही चलेगा। वो मारेगा तो सीधा चलेगा, ना मारेगा पीछे टांग मारेगा। आप ना मारोगे तो वो मारेगा, आप मारोगे तो वो नहीं मारेगा। क्योंकि मुझे चलाओ, क्योंकि उसको पट्टे खिलाने पड़ते हैं। हाँ अच्छा, कि दोस्तों के साथ कभी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने वाला सीन हुआ है? फ्री का खाना काफ़ी खाया हमने, टिका के खाया है। टिका के खाया है, तो इसकी वजह कभी पकड़े नहीं गए? नहीं पकड़े गए, दोस्त होते हैं, कोई एक आधा, मसा के 10 लोग हैं, 2 को कार्ड आया, 8-7 वैसे चले गए। वाह, यानी नहीं डालना ना। खाना तो हमने ही है। 2 के साथ पूरी बारात। हाँ बिल्कुल, कोई पूछता ही नहीं है। किसी ने क्या पूछना है, इसको इनवाइट किया था, बाकी सबको तो पता। बिल्कुल पता तो होता है कि, लेकिन वो कहते हैं कि इनके साथ वो जानने वाले हैं, इसके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, खाए हैं। बल्कि जाने से इंसान जो है ना, उनका ज़्यादा मज़ा आता है शादी जाने में। अच्छा, तो अभी तक कोई फनी मोमेंट आपके फ्रेंड्स के साथ जो अभी तक आपको याद हो? फनी तो कोई भी नहीं हुआ, एक दफ़ा मेरे साथ फनी हो गया था। तो वो बताएं। क्योंकि हमने नहाने गए हैं, बारिश का पानी खड़ा हुआ था, उसने कहा भाई पानी छोटा है। मैं कहा ठीक है, थोड़ा सा आगे गए हूँ और उधर ना आगे थोड़ा डूंगा पानी था। ठीक है, गोते आए हैं भाई, वो उन्होंने निकाला, मुझे यही फनी हुआ है। तो ये कब फनी हो गया, गोते आ गए? उस दफ़ा मैं गया ही नहीं हूँ फिर उसके बाद। अरे वाह, तो शेर शायरी आती है? नहीं, शेर शायरी नहीं आता। सॉन्ग चलो सुना देता हूँ। हाँ सुना। अच्छा, बेचैन था इस कदर सो न सगा रात भर, बेचैन था इस कदर सो न सगा रात भर, पलकों से लिख रहा था नाम तेरा उस चांद पर। अरे वाह, जबरदस्त हो गया। अभी तो आपको शेर आता नहीं था। तो शेर, बब्बर शेर दिमाग में आ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूं। आपका नाम? नदीम खिलजी। नदीम खिलजी? खिलजी। खिलजी, क्या करते हैं आप? मैं बस एम्प्लॉई हूँ। नहीं है। अच्छा, वैसे इधर किसके साथ है? इधर ये पुराना लफंगा दोस्त है, उसके साथ है। ये रहा। तो वो कुछ खाने भी नहीं है, शॉपिंग करने? ये उन्होंने जूस पिलाया अभी तक, बस जूस पिलाया अभी तक। वैसे खाने पे इनके पास में जूस भी मैंने पिलाया है। अच्छा, आप आए और जूस भी आपने पिलाया? इधर आ जा, इधर आ जा। देखा, मैं इसी बहाने से, मुझे पता था अभी आएगा, अब आया ना, अब आ गया। हाँ जी बिल्कुल। तो अब आपके, लेकिन कैसा दोस्त है वो, आया और कुछ लाए ना। हाँ बिल्कुल। जो फिर ये तो लेके तो आने। हाँ जी। अब आप क्या खिला रहे हैं? अभी इनको ये इससे उम्मीद नहीं है मुझे कि ये मुझे कुछ ये इनसे पूछिए आप आज क्या खाएगा। अब तो कैमरे के सामने तो हाँ कर दूंगा मैं। नहीं, ये झूठ बोलेगा जो भी बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि मैं खिलाऊंगा, ये झूठ बोलेगा। नहीं, जो इंशाल्लाह को समोसे पकौड़े खिलाऊंगा। मुझे नहीं पसंद। मुनाल पे लेके जाए तो ठीक है, वरना अच्छा ठीक है यार, कैमरे के सामने ओके है, चलो सामने ओके, यानी बैक कैमरा पास। हाँ जी। पैसे नहीं है। अच्छा, वैसे इधर मार्केट का क्या फेमस है, आपको क्या लगता है? सॉरी दोबारा। खाने पीने में क्या फेमस है मार्केट का? मार्केट में हम तो रहते हैं उधर फिरदौस मार्केट, हॉस्टलाइज है, वहाँ शवारमा मिल जाता है, जिंगर बर्गर अच्छा मिल जाता है, और वो कढ़ाई बड़ी अच्छी मिलती है। अरे वाह, जबरदस्त हो गया। अच्छा, वैसे आपके दोस्त के आपके बारे में क्या राय है? निकम्मा ही कहते हैं सारे, और क्या कहना है। एक कंजूस भी है। हाँ, कंजूस भी डेफिनेटली कहते हैं। तो क्या आप इस कंजूसी के ताने को हटा नहीं सकते कि मतलब खिला दे कुछ? आपके सामने बात है कि भाई को मैं मुनाल लेके जाऊंगा अपने दोस्त को। वो तो कैमरे में किया ना, बस आप समझ जाए आप। अच्छा, बचपन में जो स्कूल से लेट हो जाते तो क्या ज्यादा बहाना बनाया करते थे? स्कूल से लेट हो जाते थे, बहाना वही जो सबका बहाना होता था जी, आज उस्ताद नहीं आया, छुट्टी आज, बस यही बहाना लगाते थे। नहीं, घर में नहीं, उधर स्कूल से नहीं, स्कूल में जब लेट हो जाते थे टीचर को क्या बना? टीचर को क्या बहाना लगाते थे यार, बड़े बचपन में आप चले गए हैं, अब मैं क्या याद करूँ, क्या कहते थे हम? छुट्टी के बाद, छुट्टी पे क्या कहते थे? छुट्टी पे तो बस वही बुखार हो गया जी, यही बहाना होता था, बीमार हो गए हैं। कभी किसी को फोन नहीं किया था? बहुत है। मतलब कभी किसी को मार देना ना। ये असल में वो ये हमने नहीं किया, वैसे इस हद तक नहीं गए। लेकिन क्या अब मतलब लगता है कि जाना चाहिए था? नहीं, वो मारना नहीं चाहिए किसी को, मारना अच्छी बात नहीं है। मारना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ को फनी मोमेंट बताएं। फ्रेंड्स के साथ फनी मोमेंट्स यार बताओ यार, ये बताएगा भाई। आप बता दें कोई फनी मोमेंट। आप आ रहे हैं थोड़ी देर बाद मोमेंट बताने के लिए, तो फनी मोमेंट भी बता दें। फनी तो बहुत सारे गुजरे हैं, अब आपको कितने सारे बताएं? नहीं, एक बताएं, वो ज़्यादा नहीं। हम तो लेट नाइट एंजॉय करते हैं डीएचए में, मेरे डीएचए के साइड पर है,
तो हम रात को जाते हैं तो वहाँ पे एंजॉय करते हैं गाड़ी में बस। तो कोई फनी मोमेंट, कोई ऐसा मेमोरेबल स्टोरी जो अभी तक याद हो? यार तेरे साथ जो होता रहा ना, जो वो गलत, वो बता दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बड़ा बेशर्म बंदा है जो मेरे साथ। बता दो यार, क्या है इसमें शर्माने वाली क्या बात है? हमने एक्चुअली, मैं 2016 से लाहौर में आया हूँ और आके मैंने लॉ की स्टडी किया और मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। तो बस फिर ये हमारा बहुत कम होता है ऐसा ना कि फ़नी ये वो, बस हम अपने प्रोफेशन से। याद आ गया 14 अगस्त में ना, तो हम वो 4-5 रूममेट थे और सब हॉस्टलाइज थे। तो हमारा एक बड़ा मोटा दोस्त था मुकीत सरगोदा से, अगर वो सुन रहा है तो सुन ले। तो वो थोड़ा था तो मोटा लेकिन बड़ा शरारती था। तो शाम को वो आया, इतना बड़ा बाजा लेकर आ गया। तो हमारे रूममेट सोए हुए थे, तो वो उसने, और हमारे एक अंकल भी सोए हुआ था, वो भी रूममेट था, वो था भी पठान। उसने आके कानों में आके इतना बड़ा जब बाजा बजाया ना, बस आज़ादी का ऐलान। हाँ, वो उन्हें पा करके बजाया, तो वो लम्हा आज तक नहीं भूला। वो बड़ा इंजॉय करते हैं हम। अभी एज वो आज़ादी बताई ना, एज जिंदा कौम उठो के हम मरे हुए। बिल्कुल। उसके बाद जो पठान ने जो हशर किया ना उसका, मतलब ऐसे ही सुना, मतलब दे दे के आप लोगों को तवीज़ नहीं है, आप लोगों को शौर नहीं है, बोलते ही। लेकिन वो बहुत अच्छा था, बहुत दिल का। लेकिन वो वक्ती तौर पर उनका गुस्सा था, बाद में सब ने खूब हंसे, कहता है बड़ा अच्छा मोमेंट हो गया। वो गलत कमेंट नहीं करना। नहीं, मैंने कहा पठानों का गुस्सा वैसे ही बड़ा होता है, ऐसा मैंने कोई गलत कमेंट नहीं किया। अच्छा, कोई शेर शायरी याद है? हाँ जी, चले कोई शेर सुना। तो बड़े हैं, शेर सुनाए फिर। शेर सुनाए। जब से देखा है तेरी सूरत को, जब से देखा है तेरी सूरत को, लोग मरते हैं मेरी आंखों पर। वाह जी वाह, तेरी सूरत यानी अपनी सूरत कोई देख के। अच्छा एक मिनट ऐसे कर लेता हूँ, जब से देखा है तेरी सूरत को, नहीं रहने दे मेरी आंखों पर। अब ठीक है? हाँ सही है भाई, जबरदस्त हो गया। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं। गरीब आवाम उन फलों को नहीं खरीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए, बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ 1 गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है।
तो ये तरबूज आपसे लोग शौक से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? I am very fine and how are you? I am also fine. किसके साथ हैं आप? With my mother and some of my relatives here. तो कैसा लगा आपको इधर आके? I am feeling very pleasure and I really like this place. And I used to come here when I was a kid and this place brings back so much memories. I love this place. तो किस टाइप की मेमोरीज हैं आपके पास? I have a lots of memories. Like when I was a child, I come here with my parents, my sister here, and we would go to every store and check out things like clothes, jewelries, and everything, and also some things like we will just go to some restaurants and eat some food, and these memories are the best in the world. बेस्ट मेमोरीज। यस। अच्छा, वैसे इधर किस टाइप की मेमोरीज बनी आप? कुछ खाया भी है इधर से? Yes, I used to eat burgers and everything, and my mother liked to drink some juice and everything, and this place is very good, and I really remember it, and I used to come here with my father. अरे वाह, ज़बरदस्त। किधर से आप वैसे? I'm from Pakistan here. From a small village called Malakand, like Swat. From small village, it's like 12 hours away from this place. Yeah, but when I was a kid, I went to Dubai and just grew up there. I was like 6 to 7 years old when I grew up there, and when I was 11, I come back. अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया। तो वैसे आपको कोई पोइम आती है? कौन सी क्लास में? 4. और तो फिर पोइम आती है? याद नहीं है, I don't remember. ओके, कोई सॉन्ग? या चलें, सॉन्ग सुना। I can't remember. आप कुछ भी याद नहीं है? No. ब्लैंक हो क्या है? खाली बिल्कुल। तो शेर व शायरी भी नहीं आती होगी? चलें, कोई बात नहीं, मैसेज दे दें कोई। मैसेज: never judge a book by its cover. ओके जी, बाय द वे, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं ठीक, अलहमदुलिल्लाह। आपका नाम?
मेरा नाम दावर अली है। तो क्या करते हैं आप? मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ। और इधर क्या करने आए? मैं पेशावर का हूँ बेसिकली, और यहाँ पे काम के लिए आया हूँ। तो इधर कुछ खाया भी आया आपने? जी, मैंने बाहर खाना पीना तो कर लिया इधर। तो क्या पसंद है इधर का? इधर का मुझे आलू अंडे बहुत पसंद आए। मैं हर टाइम आलू अंडे ही खा रहे होते हैं। अरे वाह, उसकी वजह लोगों को कुछ पसंद आता है, कुछ पसंद है, आपको आलू अंडे पसंद है? क्योंकि यहाँ पे डिश ही कॉमन आलू अंडे ही है। जहाँ पे जाएं तो आलू अंडे आलू अंडे आलू अंडे, बस हर जगह। वो पसंद करनी पड़ी है। ऑब्वियसली बात, मजबूरी है। अच्छा, अगर आप कोई मशहूर शख्सियत होते तो कौन सी होते? मैं मशहूर शख्सियत होता तो कौन सा होता? मैं आइंस्टाइन होता। आइंस्टाइन। और इसकी वजह क्या? लोग पता नहीं क्या क्या बनते हैं, कोई इमरान खान, कोई कुछ कोई कुछ। ऐसा दिमाग आज तक एक इंसान का भी नहीं था वैसे, और उसका दिमाग पे आज भी लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो ऐसा दिमाग होता तो बहुत कुछ कर सकता था। तो दिमाग इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो दिमाग तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितनी सलाहियत अल्लाह ने दी है उतने ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आइंस्टाइन जितनी नहीं दी? नहीं, आइंस्टाइन जितनी नहीं दी। तो आइंस्टाइन जितनी आप चाहते हैं? जी बिल्कुल, कि आइंस्टाइन जितना दिमाग होता तो काफ़ी अच्छा होता। अरे वाह। वैसे दोस्तों के साथ घूमना पसंद है या फिर फैमिली? मुझे जो है फैमिली के साथ ज़्यादा घूमना पसंद है, क्योंकि फैमिली से दूर हूँ तो फैमिली को ज़्यादा मिस करता हूँ। हाँ, जिससे दूर उसकी ज़्यादा चाहत। अच्छा चलें, फ्रेंड्स के साथ कोई ऐसा मोमेंट जो अभी तक याद? फ्रेंड्स के साथ अभी तक हम लोग कुमराट गए थे, वो मैं बहुत मिस करता हूँ फ्रेंड्स के साथ। उसमें कौन सा ऐसा मोमेंट हुआ था जो अभी तक याद है? हमारे एक दोस्त के बूट फट गए थे। तो वो गए थे, और वो जो है ना फटे बूटों के साथ हमारे साथ कुमराट में घूम रहा था। तो उसको नए नहीं लेके दिए? कुमराट में शॉप्स ही नहीं है कि हम उसको शूज़ लेके वो अपने को ही दे देते, कोई एक्स्ट्रा ले जाते? अपने एक्स्ट्रा जो है, हम ट्रैकिंग कर रहे थे तो उस वजह से हम लोगों के पास एक्स्ट्रा शूज़ नहीं थे, उसको ऐसे ही फिरना पड़ा। लेकिन हमने फिर एक्सचेंज करते रहे बेचारे के साथ, लेकिन अच्छा हुआ उसके। लेकिन वो काफ़ी रिस्की हो गया। जी जी, रिस्की हो गया था। चलो कोई नहीं, रिस्क लेना चाहिए। अच्छा, आपके दोस्तों की आपको क्या लगता है, आपके बारे में क्या राय हो सकती है? मैं बहुत फ्रेंकली इंसान हूँ। मैं गपशप में, फैमिली में भी मुझे सब लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंकली मानते हैं, और मैं महफिल की जान हूँ। मतलब बेसिकली मैं जिस महफिल में भी बैठता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करता हूँ। जी, तो इसी ये आप लोगों की, आपके दोस्त की फिर आपके बारे में अच्छी राय होगी। बस अब दोस्तों से पूछेंगे तो आपको बहुत बैड कमेंट मिलेंगे। लेकिन इसीलिए आपसे पूछी। जी जी, तो वैसे बहुत अच्छा हूँ मैं, अपने बारे में क्या तारीफ करूँ वैसे। मैं फ्रेंकली हूँ, बस ये है। अरे वाह। तो गाना शाना आता है आपको? नहीं, मैं बाथरूम सिंगर हूँ। तो कोई पोइट्री वगैरह? पोइट्री भी नहीं आती, इस चीज़ों का शौक नहीं है सीरियसली। तो फिर कोई मैसेज है? मैसेज ये है कि जियो और जीने दो। जियो और जीने दो। बाय, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आपका नाम? इमरान। इमरान, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, क्या पढ़ रहे हैं? मैं पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो इधर किसके साथ है? ये दोस्त है मेरा, इसके साथ आया हूँ। शॉपिंग करने, खाने पीने? दोनों, खाने पीने भी, शॉपिंग करने भी, घूमने हैं बस। क्या इरादा है इधर से लेने का? अभी फ़िलहाल ये बच्चों की कुछ चीज़ें ली हैं और आइसक्रीम खाई है, बस यही। कुछ खाने का इरादा नहीं है? देखते हैं, अभी यहाँ पे घूमते हैं, पूछते हैं। आहिस्ता आहिस्ता? हाँ जी, देखेंगे। हाँ, बस। अच्छा, वैसे आपके दोस्तों की आपको क्या लगता है, आपके बारे में क्या राय हो सकती है? मेरे दोस्तों की, वो तो मुझे तंग ही करते रहते हैं। करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या राय हो सकती है उनकी आपके बारे में? ठीक है, पॉजिटिव ही है राय उनकी, कोई ऐसा कोई नेगेटिव राय तो नहीं है। बस ये है कि शुगल वगैरह जो है वो चलता रहता है, बाकी ठीक है, पॉजिटिव। अच्छा, अगर आप कोई मशहूर शख्सियत होती तो कौन सी शख्सियत होती? इमरान हाशमी। इमरान हाशमी? मजाक कर। मशहूर शख्सियत होते तो कोई मतलब ब्यूरोक्रेट टाइप कोई भी होता है इस टाइप की वजह? वैसे ही मुझे अच्छे लगते हैं ये जो है ये ब्यूरोक्रेट्स, ये CSS करना, ये इस तरह के जो ऑफिसर्स होते हैं। अगर आपको किसी मशहूर शख्सियत के साथ खाना खाने का मौका मिले तो वो कौन सी शख्सियत होगी? अपनी मदर के साथ खाऊंगा, बस यही है। यही? अरे वाह, बस इधर ही मदद तक की? हाँ। कोई मशहूर शख्सियत नहीं? मशहूर मैं नाम कोई पसंद नहीं है? नाम लेने को जो मर्जी ले लूँ, मैं क्या कहूँ, किसी एक्टर का नाम ले लूँ, किसका नाम लूँ? नहीं, मतलब जो आपको पसंद हो। पसंद तो बहुत है, क्या कहूँ कि किसी के साथ भी कोई मतलब जो है वो। करने के बाद अगर जाते थे तो क्या बहाना बनाते? बीमारी का ही बनाना होता था कि बीमार हो गए थे, इस तरह ये वो। तो
कभी वो वाला नहीं किया कि डेथ हो गई थी, कभी किसी को मारा नहीं? नहीं ऐसा वो कभी कभार हो भी जाता था, वो दूर का कोई रिश्तेदार दूर का कोई रिश्तेदार जो है उसको मार देते थे, बाकी जो है वो मार के अपनी जान बचाते थे। बस इस तरह होता है, सबके साथ ही होता है ये। हाँ जी। गाने शाने आते हैं आपको? आते हैं थोड़े बहुत। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ कोई ऐसा मोमेंट जो अभी तक याद हो आपको? फ्रेंड्स के साथ ऐसा मोमेंट, बहुत से मोमेंट। अभी किस तरह का मोमेंट होगा? फनी मोमेंट। फनी अभी इसके साथ था, ये लेडीज़ की शॉपिंग कर रहा था तो मैं इसे तंग कर रहा था कि यार ये लेडीज़ के काम है, लेडीज़ को करने दो, हमें क्या पता लेडीज़ के हो, ना हमें स्टफ़ का पता है, ना हमें कोई इस तरह से जो न्यू आजकल डिज़ाइन है, बस यही इस तरह की है, छोटे मोटे मजाक, बस यही चलते रहते हैं। तो कोई गाना शाना आता है आपको? गाने आते हैं। हाँ, तो एक सुना दो। गाना मैं मतलब सुना दूं आपको? कौन सा सुनाऊं गाना आपको? कौन सा आपको आता है तो वो सुनाएंगे। अच्छा, यही आता है वो, मतलब आते तो बहुत हैं गाने, मैं बहुत शौक से सुनता हूँ। उसमें यही है कि जीना जीना कह लें, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम, इस तरह से मतलब ये गाने, बस इतनी अच्छी आवाज़ है। नहीं इससे उस वैसे नहीं। चलिए कोई मैसेज दे दें। मैसेज दे दें पब्लिक को? क्या किस तरह का? पब्लिक को यही कहूँगा कि जिस तरह का आजकल टेंस माहौल है, इतनी इन्फ्लेशन है और जिस तरह के माहौल हालात हैं पाकिस्तान के, ठीक है, हर तरफ जो है वो टेंस सा माहौल है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है चीज़ें, तो खुश रहें, बाहर आएँ, घूमें फिरें, जितना हो सकता है खुश रहें, बस यही। ऐसे ही है। बाय द वे, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well.
कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? मैं ठीक अलहमदुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम वसीम। तो क्या करते हैं आप? मैं एज ए प्रोड्यूसर काम करता हूँ एक एजेंसी के साथ। तो कैसे जा रहा है आपका काम? अल्हम्दुलिल्लाह काम तो बहुत अच्छा जा रहे हैं आजकल। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। तो इधर किसके साथ आए? इधर दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ घूमने फिरने की, शॉपिंग करने? ना शॉपिंग करने तो नहीं, बस एवं ही अभी ऑफिस से छुट्टी हुई है तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा घूम फिर आते हैं। अच्छा, क्या कुछ खाने का इरादा है? जी ज़रूर। तो क्या खाने वाले हैं आप जो खिला दें। आप? मैं क्यों खिलाऊँ? मैं अपने आप को नहीं खिला रही, आप बताएं। मैं बस जो फास्ट फूड में कोई भी ट्राई कर लूँ। फास्ट फूड पसंद करते? अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, कि आप कोई मशहूर शख्सियत होती तो कौन सी शख्सियत होती है, आपको क्या लगता है? मैं इमरान अशरफ। इमरान अशरफ, उसकी वजह? एक्टर। हाँ, तो उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि वो जो रोल अदा करता है ना अपना किसी भी ड्रामे में, लाइक जो वो मूसा बना, लाइक वो उसमें फिट आ जाता है, वो उसमें घुल जाता है, मिल जाता है। ये बिल्कुल। तो मैं भी वैसे ही बनना चाहता हूँ। जी। तो कौन सी ऐसी फेमस मतलब मशहूर शख्सियत है जिनके साथ आप खाना खाना पसंद करेंगे अगर आपको मौका मिला? खाना खाना रिसेंटली लाइक जो अपना मेरा दिल है वो करण औजला, इंडियन। उसकी वजह यानी दूर का ही सोचा है ना ताकि मिल ही ना सके? नहीं, फ़ैन है औजले के। अच्छा, तो इसीलिए तो उन जैसी शख्सियत क्यों नहीं बनना चाहते आप? क्योंकि पाकिस्तानी है, फिर थोड़ा बहुत तो पाकिस्तानी आता है ना दिल में। नहीं, पाकिस्तानी होने का थोड़ा बहुत फर्ज ही निभा रहे हैं। थोड़ा बहुत तो फर्ज निभाना चाहिए। अच्छा, फैमिली में कभी किसी के खाने की झूठी तारीफ की है आप? नहीं। क्या मतलब जो गलत होता है वो गलत होता है? नहीं, गलत वो बनाते ही नहीं है सब। मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, वो अच्छा ही बनाती है, आपको पता होना चाहिए। ये बचने का तरीका है ना, ये वाइफ है तो वो तो बनाएगी अच्छा। वो अच्छी बनाती है। वो घर नहीं घुसने देगी अगर गलत खा? नहीं, वो तो ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है तो फिर कैसे है? गलती तो हो ही जाती है। फिर आप लड़की हैं, आप बेहतर समझ सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप भी कुछ बना लेते, कभी वाइफ की हेल्प नहीं की? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी डिश हो मैं बना लेता हूँ खुद भी। तो हेल्प फिर करते हैं उनकी? हेल्प हाँ ज़रूर करते हैं, ज़ाहिर है उनका भी हक है, वो भी पूरा हफ्ता लगातार बनाती हैं तो उनके साथ हेल्पिंग तो उनको भी तो छुट्टी तो वीकेंड पे तो उनके साथ नहीं, छुट्टी तो नहीं देते प्रॉपर, लेकिन साथ थोड़ा बहुत काम कर लो। हाँ। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है आपके दोस्तों के आपके बारे में क्या राय हो सकती है? दोस्तों से पता कर लें। नहीं, आप बताएं ना। दोस्तों के तो आपके बारे में बैड कमेंट्स ही होंगे, देख लेना। हम ये तो यारों के यार हैं। वो फिर भी तारीफ नहीं करते? नहीं, तारीफ करते हैं मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए कोई बात नहीं, आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या राय हो? क्या राय हो सकती है? उन्होंने कहना है बस फ़ोन हमारा पिक नहीं करता, आ जाता है, ये नहीं है किसी की तरफ से पैगाम आ जाए बस वो हमारा फ़ोन नहीं पिक करता। एक गिला उनको ज़रूर। वो गिला आप दूर क्यों नहीं करते? बस नहीं कर सकता, काम ऐसा है। मैं अगर सेट पे खड़ा हुआ हूँ, किसी का कॉल आ जाए मैं नहीं उठा सकता, ज़ाहिर वही उनको गिला ही रहता है। हाँ, ये तो गिला रहना ही है। रहना ही है। अच्छा, गाने शाने आते हो? गाना नहीं, इतना सुनता ज़रूर हूँ लेकिन गाना नहीं गाता। पोइट्री वगैरह? नहीं, पोइट्री भी खास नहीं, सुनने का शौक है। सुन के तो याद हो जाती है। ऐसा भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कोई मैसेज दे। मैसेज यही है बस, जिस तरह का दौर चल रहा है बस अपनी माँ बाप की खिदमत करो और पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद की जो है उनके अकीदे पे चलो और उनको अपने नमाज रोज़ा रखो साथ। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ मैं। आपका नाम? जुल्फ़िकार अली। जुल्फ़िकार अली, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब? क्या जॉब करते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में। कैसी जा रही है आपकी जॉब? बड़ी अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। तो ये बाल क्यों बड़े रखे हैं? बाल बस बड़े हो गए हैं। बड़े हो गए हैं? मुझे शौक है। अच्छा, मुझे लगा ऐसे ही बड़े हो गया तो कटवाने नहीं है। बस शौक है तो फिर वो भी हो गए। शौक है तो फिर मैंने रख लिए। शौक है तो रख लिया, आपने कहा नहीं हो गए हैं तो इसलिए मैं कह रही कि कैसे हो गए हैं, ये शौक किसको देख के हुआ? आप मेरे शौक के साथ साथ चल रहे हैं। वैसे शौक तो मुझे स्टार्ट में ही था, लेकिन मुझे जॉन एलिया को देख के हुआ। जॉन एलिया, आप लगा भी वैसे जॉन एलिया को देख के आपने वैसे रखे। तो आपको पोइट्री? जॉन एलिया पोइट्री करते हैं, मैंने उनकी पोइट्री मतलब उनके नाम से सुनी। अच्छा। तो आपको पोइट्री भी आती होगी फिर अगर आपने उनसे इंस्पायर होगी? उनकी पोइट्री भी आती है। अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, कौन सी ऐसी मशहूर शख्सियत है जिन जैसा आप होना चाहते हैं? जी, आपको लगता है क्या आप उन जैसा हो सकते हैं? अगर आप मशहूर शख्सियत होते हैं तो आप वो होते? मशहूर शख्सियत अगर वो होता, किस टाइप की, शोबिस की या? नहीं, जिस टाइप की जो आपको जो है अट्रैक्ट करती है, जो पर्सनैलिटी।
मैं अगर होना चाहता तो मैं अपने वालिद साहब जैसा होता। वाले साहब जैसा, तो क्या आप उनसे चेंज हैं? नहीं, वो माशाल्लाह वो बहुत बड़े ऑफिसर थे और बड़ी अच्छी, वो बड़े नेक और ईमानदार और आप उन जैसे ईमानदार और नेक होना चाहते, लेकिन हम उनकी रीस तो नहीं कर सकते। हाँ, वालिद की तरह कम ही हो सकते हैं। जी जी। अच्छा, अगर कोई किसी फेमस पर्सनैलिटी के साथ खाना खाने का मौका मिले तो वो कौन सी पर्सनैलिटी हो? फेमस पर्सनैलिटी जेंट्स या जो भी हो आपको लगे। मरियम नवाज। मरियम नवाज, वाह, यानी नून लीग सपोर्ट रहे हैं आप? हाँ, मैं नून लीग नहीं सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन उनकी जो उन्होंने इस जब से ये सीट संभाली है, माशाल्लाह बड़े अच्छे उन्होंने काम किए हैं, बड़ा अच्छा आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही हैं। तो इधर आप किसके साथ आए हैं, दोस्तों के साथ या अकेले? नहीं, मैं फैमिली के साथ। फैमिली के साथ शॉपिंग कर रही है, मैंने कहा मैं ज़रा घूम फिर लूँ, आप शॉपिंग कर लें। तो आपने भी कोई शॉपिंग की है? नहीं, मैंने 2-3 दिन पहले कर ली थी। अरे वाह, तो क्या खाया पिया है कुछ इधर से? हाँ, मैंने खाया है वैरायटी का पैराडाइज का शवारमा। कैसा लगा आपको? वो अच्छा है, मैं जब भी इधर आता हूँ वो खाता हूँ। लाजमी खाता हूँ। यानी वो फिक्स है? हाँ, फिक्स है। तो कोई मुझे जॉनी लिया के शेर सुना दें अब आप। जॉन साहब का 4 लाइनों वाला कथा है कि मेरी अक्ल होश की सब हालतें तुमने सांचे में जनू के ढाल दी, कर लिया था मैंने अहदे तरके इश्क, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। जबरदस्त है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। बस उनका शेर समझने के लिए समझदार होना जरूरी है। चले, कोई बात नहीं है, आप मुझे थोड़ा बहुत समझा दें, मतलब मेन पॉइंट। मैं आपको कोई और आसान सा शेर बता देता हूँ। उनका एक शेर है कि क्या हुस्न इत्तेफाक है उनकी गली में, हम एक काम से गए थे हर काम से गए। अरे वाह, ये अच्छा, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, क्लास में आए। ठीक है। रंद्रा, आपका नाम? अजहर नाम है मेरा। अच्छा, तो क्या करने आए, किसके साथ आए? मैं अकेले आए लिबर्टी। वैसे तो कुछ खाया भी है इधर? नहीं, वैसे भी घूमने फिरने आए, तो अभी बाद में खा लेंगे। तो दोस्तों के साथ नहीं आए? नहीं, मैं अकेला आ गया, बड़ी बात है। अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, वैसे स्कूल में जब स्कूल से लेट होते थे, छोटे होते, तो क्या बहाना बनाते थे, या छुट्टी होने के बाद क्या बहाना बनाते थे जब छुट्टी हो? क्या मतलब? मतलब अगर छुट्टी हो गई है स्कूल से, तो कल अगर स्कूल जाना है तो स्कूल जाके क्या बहाना बनाना है, किस वजह से छुट्टी की? कि मतलब मुझे बुखार था या मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस वजह में कि मतलब जैसे कि चला गया काम से, तो ये बहाना। तो आप ये नहीं कहते थे कि मतलब फौदगी शोदगी नहीं, कभी किसी को मारा नहीं? नहीं, वो तब देते था कि जब बता दें कि हाँ जी फौदगी हुई है, तो फौदगी पे फौदगी कहना है, फौदगी बगैर फौदगी नहीं कहना। अरे वाह, यानी सच्चे थे? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी होते आप तो कौन सी होते? कौन से? क्या मतलब? अगर आप कोई फेमस पर्सनैलिटी होते तो कौन सी होती? कोई भी, मतलब कोई आपको एक पसंद होती है ना, तो आप वो बताएं। खाने पीने की? नहीं, फेमस पर्सनैलिटी, मशहूर शख्सियत अगर आप कोई होते। अच्छा, वो फिल्मों का, कॉमेडी का, शाहरुख खान वाला, अभिषेक बच्चन वाला। अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया। तो क्या आपको खाना खाने का मौका मिले तो आप किसके साथ खाना खाना पसंद करेंगे, किसी मशहूर शख्सियत के साथ? वो है फिर अभिषेक बच्चन। उसकी वजह? वो बंदा अच्छा है। बंदा, बस बंदा ही अच्छा है? नहीं, मतलब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या रॉय, ये दोनों अच्छे हैं। अच्छे हैं। उनकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगी है? वो बात बड़ी अच्छी करते हैं, गाने बड़े अच्छे गाते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, दोस्तों के साथ कोई फ़नी मोमेंट जो अभी तक आपको याद हो? मोमेंट घूमना फिरना, जैसे कि यहाँ खाना खाना, शौरमा खा ली, बर्गर खा लिया, कहीं चले गए घूमने फिरने, या ये होती है ऐसी। यानी बस घूमना फिरना है? हाँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। तो कोई शेर शायरी आती है? नहीं, गाना आता है। गाना आता है? गाना सुन।
डिस्को दीवाने आहा आहा ओ डिस्को दीवाने आहा आहा नशीली है रात हाथों में हाथ नाचे सितारों के साथ सुंदर बदन ये चंचन दहल नाचेगा ऐसा डिस्को दीवाने आहा हमारी आवाज़ मोहब्बत का सांस आओ सजा दिए हाल झूमे कदम बहकते कदम सुबह हो या हो रात डिस्को दीवाने आहा ओ डिस्को दीवाने आहा नशीली है रात हाथों में हाथ नाचे सितारों के साथ सुंदर बदन ये चंचन दहल नाचेगा ऐसा डिस्को दीवाने आहा ला ला। थैंक यू सो मच। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। आपका नाम? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं? FA। चलें, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, वैसे इधर किसके साथ आए हैं? दोस्तों के साथ आए। तो क्या खाने पीने आए हैं, शॉपिंग करने? घूमने फिरने। बस घूमने फिरने? घूमने फिरने। क्या कुछ खाने का इरादा नहीं? इरादा बन जाता चलते चलते। चलते चलते, वाह ज़बरदस्त हो गया। तो क्या फिर इरादा अभी तक कुछ नहीं हुआ? अभी तो एंट्री ली है। तो वैसे फास्ट फूड या देसी क्या पसंद करते? सब कुछ, बर्गर, शवारमा। यानी जो मिले बिस्मिल्लाह। अच्छा, खुद भी कुछ बना लेते हैं? जी सॉरी, खुद भी कुछ बना लेते हैं? नहीं, खाने के शौक है। अच्छा, खाने में बिस्मिल्लाह, बनाने में नहीं, जान छूटे, बस मिल जाए बना हुआ, इसलिए फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है। अच्छा, वैसे फैमिली में कभी किसी के खाने की झूठी तारीफ की है? अक्सर करनी पड़ती है।
अक्सर करनी पड़ती है। तो लास्ट टाइम किसकी की? दावत पे गए थे रिलेटिव्स के, तो क्या बना था? बना तो कौरमा ही था, लेकिन कौरमा लग नहीं रहा था। अच्छा, तो तारीफ कर दी झूठी। उन्होंने पूछा कैसी बनाए तो कहना ये तो बहुत अलग बना। हम कहा बहुत अच्छी बना है, क्योंकि उधर स्टे करना था अभी 2-3 घंटे। ये झूठी तारीफ करनी पड़ी रुकने के लिए। बिल्कुल। अरे वाह। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर आपको कोई दिमाग पड़े तो क्या मिले? ना ही पढ़े तो अच्छी बात है। नहीं वैसे क्या, नहीं वैसे ये पढ़े ना तो अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता क्या है? एक नॉर्मल माइंड जो होता है हर लड़के का, वही चीज़ें मिलेगी। हम नॉर्मल का है। अच्छा, अगर आप कोई मशहूर शख्सियत होते तो कौन सी होती? मुश्किल सवाल है। तो मुझे जैसे कुछ लोग पसंद है, जैसे मुझे तारिक जमील बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, उनकी पर्सनालिटी, बात करने का तरीका, और तो ये होते। बिल्कुल। और अगर आपको किसी मशहूर शख्सियत के साथ खाना खाने का मौका मिलता तो वो कौन सी शख्सियत होती? उन्हीं के साथ ही खाता है, क्योंकि जबरदस्त। ये भाई पहला बंदा जिसको जो पसंद थी उसी के साथ खाना खाना भी पसंद। जी। वरना जिनको जो पसंद होती है वो खाना भी दूसरों के साथ। फिर उनकी पसंद वो नहीं हो सकती, क्योंकि पसंद के साथ टाइम गुजारने में ज़्यादा मज़ा आता है। उनके साथ टाइम गुजारने में ज़्यादा। अच्छा, वैसे आपको गाना शाना आता है? नहीं, गाना वगैरह नहीं आता, और आवाज़ भी नहीं इतनी अच्छी कि मैं कैमरे के आगे। अच्छा, पोइट्री वगैरह? पोइट्री थोड़ी कभी मैंने किसी की पढ़ी नहीं है, वैसे ही कभी कभी कुछ लिख लेते हैं। तो वैसे अभी मेरे पास हो ना हो, मैंने कुछ लिखी है एक दो। तो आपको याद होगी, वो सुनाए। रुख मेरी तरफ करके निगाहें सब पे ही रखती हो, हुनरमंद हो यारा तुम, बताओ कैसे ये करती हो। अरे वाह, जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? जैन रज़ा। जैन रज़ा, किसके साथ आए? मैं किसी को लेकर आया। किसी को लेकर आए हैं? अरे वाह, किसको लेकर आए? मेरे कज़न आए हुए हैं कराची से। तो अब उन्हें घुमाने लेके आए? घुमाने लेकर आए। तो क्या खिलाया पिलाया? अभी तो अंदरून घुमाया, खाना खाने जाना है अभी। उसके बाद क्या खाने का इरादा? बरकत मार्केट से हम देखते हैं कढ़ाई शढ़ाई खाएंगे, इसी तरह की चीज़ खाएंगे। फुल डे आज इंजॉय? हाँ, 2 दिन से, कल से। उन्होंने मतलब जब चले जाना है तब फिर बस? हाँ, मैं वैसे खुद भी कराची का ही हूँ, मैं तो खुद हॉस्टल में रह रहा हूँ। अच्छा, वो आपसे मिलने आए? हाँ, मिलने आए हुए। तो आप उन्हें घुमा रहे हैं कि मैं इधर आया हूँ, ये देखो। जी। अरे वाह, तो कैसा लगा उन्हें लाहौर? अच्छा लगा, अभी तक तो काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी अच्छा। और आपको कैसा लगा? मुझे भी अच्छा लगा, तभी तो बुलाया। देसी और फास्ट क्या पसंद करते हैं? देसी। कुछ बना भी लेते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा बनाना आता है, कढ़ाई दाल वगैरह इस तरह चीज़ें सीख ली हैं अभी तक बनाना। ज़बरदस्त हो गया, भेजा तो सीखी है ना। हाँ। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि आपको मशहूर शख्सियत होती तो कौन सी होती? मैं क्रिकेटर होता, मैंने अंडर 19 खेला भी है क्रिकेट। हाँ, ज़बरदस्त। तो क्या किससे इंस्पायर हो के आपने जो है क्रिकेट स्टार्ट किया? मैंने बेसिकली 2011 में क्रिकेट स्टार्ट किया था, और मुझे उस टाइम पे याद है कि जब इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल हुआ था, तो जब पाकिस्तान हारा तो दुख हुआ था, तो मैंने कहा था मैंने क्रिकेटर बनना है। तो मैंने बनना है, पाकिस्तान को जिताना। हाँ, वो एक मेरी मोटिवेशन थी उस टाइम पे। मतलब खुद ही करके तो बस? हाँ जी, ऐसे ही। यानी खुद ही कोई शौक था, किसी के इंस्पायर हो के नहीं? नहीं, इंस्पिरेशन नहीं थी। मैं उस टाइम 8 साल तो मेरी उम्र थी 2011 में, तो उस टाइम क्या इंस्पिरेशन होगी, शौक। जी, शौक। अरे वाह। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपको कोई दिमाग पड़ेगा तो क्या मिलेगा? मेरा दिमाग अगर कोई पड़ेगा उसको मैं पागल लगूंगा। अजीब अजीब सोच है। अजीब सोच? हाँ। ऐसी क्या अजीब सोच? मतलब ऐसी कोई दिमाग पड़ेगा, उसको क्या कह सकते हैं, पता नहीं कैसा लगेगा। वैसे अच्छा, आपको आपके दोस्तों के साथ कोई फ़नी मेमोरेबल स्टोरी जो अभी तक याद हो आपको? फ़नी मेमोरेबल स्टोरी, हमने एक दफ़ा कराची से लाहौर से लेके पिंडी तक सफ़र किया था बगैर टिकट के, और हम आखिर में पिंडी पहुंचने वाले थे, हम पकड़े गए थे। ओह शिट। तो फिर क्या मतलब काफ़ी पड़ी नहीं? पढ़नी क्यों थी, हम 8-10 लड़के थे, हमने उनको पकड़ के मारना था टीटी को, लेकिन वो पैसे दे दिए ना फिर हमने उसको, टिकट के जो भी बनते थे। यानी सारा जो प्लान किया था वो ख़राब हो गया। चले, कोई बात नहीं। मैसेज यहाँ कोई नहीं? कोई पोइट्री आती है आप? नहीं, पोइट्री का शौक ही नहीं है मुझे, डिप्रेशन। तो अच्छा, कुछ सॉन्ग वगैरह? गाना गाऊंगा नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं। क्यों, ऐसा क्यों है? नहीं, मैं वैसे गाने वगैरह सुनता नहीं हूँ, ना मैं मूवीज़ देखता हूँ, तो मुझे इतना ख़ास कुछ आता नहीं है ना। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, मैसेज देते हैं। मैसेज ये कि लाइक
ये अब जैसे कल एक वाकया हुआ है छोटा सा कराची में कि एक मार्केट खुली थी और वहाँ पे वो बहुत ओवर रश हुआ और इस तरह हुआ, तो बस लोग चीज़ों के बजाय अगर अपने हक के लिए निकलें तो पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आ सकती है, लोगों को सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा है। बाय द वे थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी। आपका नाम? साइम अहमद। अब्दुल समद। अच्छा, क्या लगता है आप दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं या फिर? फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स हैं। घूमने फिरने आए हैं या शॉपिंग करने या खाने पीने? खाने पीने और घूमने फिरने बस। क्या खाने पीने का इरादा है इधर से? वो आपको यही बताएगा। अभी तो आए हैं, देखते हैं क्या खाना है। अभी तो घूमने के लिए निकले हैं, ऑफिस से आए हैं ऑफ करके। अच्छा, तो क्या मतलब फिलहाल क्या इरादा करके आए हैं कि क्या खाएं? इरादा खाने का कुछ अच्छा लगे यहाँ पे, फ्राइज़ वगैरह या कोई पिज़्ज़ा वगैरह हो तो। फास्ट फूड या देसी क्या पसंद करते हैं? फास्ट फूड। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर आप कोई मशहूर शख्सियत होते तो कौन सी होती? सोशल? कोई मशहूर शख्सियत होते तो कौन सी होते? मतलब किस हवाले से? फेमस पर्सनैलिटी। आपको क्या लगता है? मतलब एक्टर, क्रिकेटर, कौन? जो भी आपको अच्छा लगता हो। ज़्यादा हाँ पसंद है क्रिकेटर, जोस बटलर और मैक्सवेल। शायद मैं वो होता। मैं तो ये जोड़ी मोटू और पतलू की जोड़ी आज हमने ढूंढी है, मोटू और पतलू की जोड़ी। आप बेस्ट फ्रेंड्स हैं? जी बेस्ट फ्रेंड है, ऑफिस में भी साथ ही होते हैं। बिल्कुल वही वाली जोड़ी है। वही वाली जोड़ी है। तो आप अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी के साथ खाना खाने का मौका मिले तो कौन सी पर्सनैलिटी के साथ खाना खाना पसंद करेंगे? माहिरा खान हो तो चलेगी। तो चलेगी बस यानी कोई बड़ी बात नहीं है, माहिरा खान हो तो चलेगी। अरे वाह। अच्छा, अब ऐसे आप खुद भी कुछ बना लेते हैं? बना लेते हैं, जो दिल करे, मजबूरी अच्छा बना लेते हैं। बेवकूफ़ बहुत अच्छा बना लेते हैं। बेवकूफ़ बना लेते हैं? मैं इनका काम है ना, दरअसल हमारा बेवकूफ़ी बनाना पड़ता है। तो ये बनाना पड़ता है यानी आप ये कर लेते हैं? हाँ, ये इजी है। फैमिली में कभी किसी के खाने की झूठी तारीफ की है? नहीं तारीफ करनी पड़ती है, किसी का दिल रखना पड़ता है। जो चीज़ अच्छी लगे बस उसकी तारीफ कर देते हैं, झूठी तारीफ नहीं की, ना ही कभी बुराई की है बस। नहीं, सम टाइम रियलाइज़ हो जाए कि अगले बंदे का दिल रखना पड़ता है तो फिर झूठ पे बोलना पड़ता है। लास्ट टाइम किसकी की थी? लास्ट टाइम याद तो नहीं है, की होगी किसी की। करते रहते हैं जाहिर सी बात है, हर चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन बुरा भी नहीं कह सकते ना, दिल दुख देगा किसी का, किसी ने बनाई है। ऐसा ही है। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर कोई आपका दिमाग पड़े तो क्या मिलेगा? मेरे दिमाग में बहुत कुछ मिलेगा, लविंग भी और दूसरा बिजनेसमैन भी। और आपको क्या लगता है अगर आपका कोई पढ़ ले तो क्या मिलेगा? कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। आप तो सोचे ना, पढ़ लिया किसी ने तो क्या मिलेगा? मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, कभी सोचा ही नहीं। गाना शाना आता है आपको? नहीं, गाना शाना तो नहीं आता, इसको आता है थोड़ा बहुत। नहीं, इसको आता है नहीं, उसको आता है, तो दोनों में से किसको आता है? इसको आता है, पोइट्री आती है थोड़ी सी। चलिए पोइट्री, कोई शेर सुनो। मेरा अपना शेर है जो मैंने खुद लिखा है कि अर्ज़ किया है। सुना है झील गुज़रती है तेरे चेहरे से, सुना है झील गुज़रती है तेरे चेहरे से, चल तेरी आंखों में उतर कर देखते हैं, चल तेरी आंखों में उतर कर देखते हैं। क्या कहा मोहब्बत करना चाहते हो, क्या कहा मोहब्बत करना चाहते हो, यानी फुल तबाह होना चाहते हो। इतना मोहब्बत, इतना तबाह, ये क्यों बोला? ये हो जाता है बस, मेरे साथ तो नहीं हुआ लेकिन लोगों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। आपका नाम? आर्यन अहमद। आर्यन, किसके साथ हैं आप? मम्मा के साथ। तो क्या खाने पीने आए हैं या फिर शॉपिंग करने? खाने पीने। खाने पीने आए हैं, तो क्या खाए इधर से? आइसक्रीम। और क्या खाने का इरादा है? और कुछ नहीं। तो मम्मा को लूटो ना, खाने पीने आए हो तो और खाओ। दिल ही नहीं है और खाने का। है, और खाने का दिल ही नहीं है तो क्या मम्मा के साथ है? जी। तो बाबा को घर छोड़ के बाबा को किन ले गया? बाबा का दिल ही जाने का, बाबा काम से गए हुए थे। अच्छा, बाबा काम से गए हुए थे इसीलिए। तो कभी फ्रेंड्स के साथ टूर पे गए होंगे? जी, खेवड़ा में। तो कैसा रहा वो टूर? बहुत मज़ा आया। तो उसमें कोई ऐसी मेमोरेबल स्टोरी जो अभी तक याद हो? फनी? नहीं। वो मज़ा फिर कहाँ से आया? कोई ऐसी मेमोरी तो हुई होगी, कोई ऐसी बात जिससे मज़ा आया होगा? नहीं। नहीं, कोई ऐसी नहीं। जैसे फ्रेंड्स के साथ घूमना पसंद है, बहन भाइयों के साथ? बहन भाइयों के साथ। बहन भाई कितने बहन भाई आप?
तीन बहन भाई हम लोग। 3 भाई, सबसे बड़े हो? जी। सबसे बड़े हो, कभी डांट पड़ी अम्मा से? हाँ। पापा से भी? ज़्यादा आपको ही पड़ती है, दोनों को ही पड़ती है? दोनों को ज़्यादा पड़ती है। कभी लड़ाई हुई है बहन भाइयों में? हाँ, बहन के साथ ज़्यादा हुई है। और उसकी वजह? उसके बाद भी डांट आपको ही पड़ती हो? हाँ, बाबा से। बाबा से? क्यों? बाबा बहन की साइड पे ही ज़्यादा होते हैं। आपको पड़ जाती? हाँ। अच्छा, जब पता होता तो फिर लड़ते ही क्यों? वो चीज़ें तोड़ देती है मेरी। अच्छा, मूवीज देखते हो? हाँ। तो अगर किसी मूवी के हीरो हो तो कौन सी हीरोइन ज़्यादा पसंद है जिसके साथ काम करोगे? नूरे फतेह। नूरा फतेह। उसकी वजह? उसके सॉन्ग्स की वजह से या किसी और वजह से? सॉन्ग्स की वजह से। तो उसके सॉन्ग्स आते हैं आपको? नहीं। सुनते तो हो ना? सुनते हैं, इतने याद नहीं है। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज मौजूद है लिबर्टी मार्केट, जहाँ हमने लोगों से की मज़े की बातें। इसी के साथ अपनी वजिया खालिद को दीजिए इजाज़त। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, बहुत बढ़िया." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She not let us go, we're fighting now. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. मना तू डोलिया ना कर, जिंद अपनी नू रोलिया ना कर। मन मार के मेहनत कर बस, मन मार के मेहनत कर बस, खाली चोड़ियां आप भरू। बाबा नानक भली करूं, बाबा नानक भली करूं। मना तू डोलिया ना कर, जिंद अपनी नू रोलिया ना कर। मन मार के मेहनत कर बस, मन मार के मेहनत कर
जोड़ियां आप भरू बाबा नानक भली करू वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु गगन में था रव चंद दीपक बन तारिका मंडल जनक मोही
करता सचियार मेरा साईं साईं, तू करता सचियार मेरा साईं, तू करता सचियार मेरा साईं साईं, तू करता सचियार मेरा साईं, जो तू पावे सोई तीसी,
तू डोलिया ना कर जिंद अपनी नू रोलिया ना कर मन मार के मेहनत कर बस मन मार के मेहनत कर बस खाली चोड़ियां आप भरू बाबा नानक भली करू गुरु वाह वाह 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 ऐਵੇਂ मना तू डोलिया ना कर जिंद अपनी नू रोलिया ना कर मन मार के मेहनत कर बस मन मार के मेहनत कर बस खाली चोड़ियां आप भरू बाबा नानक भली करू बाबा नानक भली करू ऐਵੇਂ मना तू डोलिया ना कर जिंद अपनी नू रोलिया ना कर मन मार के मेहनत कर बस मन मार के मेहनत कर बस खाली चोड़ियां आप भरू बाबा नानक भली करू Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और
इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबारे को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छांव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम अज़ कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। ट्रस्ट है लोगों का, मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are.
Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कायम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कायम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. Rescue 112 to Lahore.
इंसान चांद पर पहुंच चुका, बहुत सी चीज़ें बना चुका है, लेकिन कुदरती आफात के आगे आज भी बेबस है। ज़लज़ला एक ऐसी ही खौफनाक आफत है जिसके आफ्टर शॉक्स हादसे से ज़्यादा संगीन होते हैं। 7 फरवरी 2023 को तुर्किया को एक ऐसे ही स्याह दिन का सामना करना पड़ा जिस दिन तुर्किया में हर तरफ तबाही ही तबाही थी। बेशुमार लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। अमारात महज मलबा का ढेर बनकर रह गई। इस गम व अलम के लम्हे में पाकिस्तान रेस्क्यू 1112 ने अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क के साथ खड़ा होने की ना सिर्फ हामी भरी बल्कि 51 अरकान पर मुश्तमल इमदादी दस्ते को अक़वाम मुत्तहिदा की INSRG रेस्क्यू यूनिट का हिस्सा बनाया। ये वाकई एक अलमनाक वाक़या था जो 6 फरवरी को हुआ और साल होने को है अभी। और हमें कॉल आई और हमें फ़ौरन हमारी टीम जो यूनाइटेड नेशंस का ज़ेली इदारा है इंसराग जो कि सर्टिफाई करता है सर्च एंड रेस्क्यू की टीमों को, वो सर्टिफाइड टीम थी जिसकी वजह से हमें मिशन करने का, जाने का, वहाँ पे रेस्क्यू करने का मौका मिला। हुकूमत ने बर वक्त डिसीजन लिया और वेरी नेक्स्ट डे वी वर देयर। वहाँ रिहाइश की मुश्किल थी क्योंकि पूरा तुर्की जहाँ पे हम डिप्लॉय हुए थे तो वहाँ हालात बहुत ख़राब थे। रिहाइश की कोई जगह नहीं थी, खाने पीने के हालात बहुत बुरे थे, इवन के यहाँ तक कि पानी भी अवेलेबल नहीं था। तो सबसे बड़ी मुश्किलात तो ये थी। दूसरा मुश्किलात वहाँ पे थी कि लोगों को जितनी बिल्डिंग कोलैप्स हुई पड़ी थी, जितनी बिल्डिंग्स गिरी हुई थी, उससे लोगों को निकालना कैसे, तो ये बहुत बड़ी मुश्किलात थी वहाँ के लिए। और साथ ही साथ मौसम की शिद्दत भी थी, बेसरोसमानी थी वहाँ लोगों की भी। तो हम जब हमारी टीम वहाँ पे पहुँची है तो ये सारे बुरे हालात में वहाँ पे हम पहुँचे हुए थे। हम बेस ऑफ ऑपरेशन पे बैठे हुए थे तो 3 लोग आए कि इसी जहाँ पे हमारा बेस कैंप था वहीं पे एक कॉर्नर पे एक बिल्डिंग थी जिसमें कोई फ़ीमेल की आवाज़ें आ रही हैं। तो उस वक़्त हमें फिर अपनी टीम को थोड़ा श्रिंक करना पड़ा बेस ऑफ ऑपरेशन पे, और उस टीम को मैंने उस ऑपरेशन को लीड किया था। वो 5 स्टोरी बिल्डिंग थी जहाँ पे खातून फंसी हुई थी अंदर, और ये ज़लज़ले का कोई 57 घंटे के बाद एक रिग्रेस ऑपरेशन था। अंदर चूँकि बड़ा मुश्किल था, वहाँ पे क्रॉल करके अंदर जाना था। हारून ने और लाशारी ने दोनों ने और उसके साथ हमारे सीनियर्स हमारी बैक पे मौजूद थे, हमें प्रोफेशनली गाइड भी कर रहे थे। हमारी ट्रेनिंग इस चीज़ पे हुई थी, लेकिन जो अंदर जाके ऑपरेशन कंडक्ट करने का एक रियल सिचुएशन में एक फ़ील थी वो ये थी कि पाकिस्तान में भी ज़लज़ला आया था। मैंने उस वक्त भी एज़ वॉलंटियर काम किया था। मैंने बहुत से लोगों को बिछड़ के मिलते हुए ज़रूर देखा है, लेकिन मैंने लोगों को देखा हुआ है कि लोग किस तरह से सारी उम्र के लिए मफलूज रहते हैं। वो जो लोग ऐसे बड़े सानहात में बच जाते हैं, अगर वो मफलूज होते हैं तो कैसे अपने घर वालों के लिए एक मैं क्या कहती हूँ, वो अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तहान होता है। तो जिस वक्त उस खातून को हम रेस्क्यू कर रहे थे तो यही सोच आ रही थी कि अल्लाह ताला इससे खैर आफियत से हमारे हाथों से अगर ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है तो ये ज़िंदा बच रही हैं, तो ये ऐसी किसी सिचुएशन में ना हो कि इनका कोई टांग काटनी पड़े। और ऐसा वक्त आया कि हमें डिसाइड करना था कि एक टांग को तो हमने रिलीव कराया, लेकिन मलबे से दूसरी टांग रिलीव नहीं हो रही थी। तो हमें ये था कि अरेंजमेंट्स भी करवा लिए थे कि शायद ये टांग काट के निकालनी पड़े। टांगें दोनों ट्रैप हुई थी तो वो निकल नहीं पा रही थी। वहाँ कटर चलाना मुश्किल हो रहा था हमसे, तो बाहर से हेल्प ली अपने इंसिडेंट कमांडर से। मैंने और उन साहब ने कि हमें फलाफला इक्विपमेंट चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने जो सोर्स थे हमें अंदर पहुँच रहे थे। जब अंदर वो सारे सोर्स मिल गए तब हमें डर था। नीचे स्लैब थी उसकी टांगों के ऊपर, नीचे हमारा हाथ या कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी कि उसको कैसे चेक किया जाए। तो वो बड़ी अजीब सी मूवमेंट थी कि अगर हम कटर चलाते हैं तो इसकी टांग काट जाएगी या इसका कोई उज़ा काट ना जाए, नीचे कौन सी टांग है। तो वो बड़ा क्रिटिकल फेज़ में थे उस वक्त। हम बड़ी देर कोशिश करने के बाद एक और जगह से एक रास्ता बनाया, एक और जगह से चीज़ें हटाई, काफ़ी टाइम लगा। वहाँ से मेरा सिर्फ एक हाथ
टच हो सका उनको, और मैंने फील किया कि अगर यहाँ कटर चलेगा तो इसको नुकसान है। तो फिर एक आइडेंटिफाई किया एरिया, वहाँ से कटिंग शुरू की, उसको बचाया, फिर एक रो बार मंगवाई, उसको फिर खींचा, उसके हाथ लगाया और बड़े आराम से उस जो तो लाइव विक्टिम था उसको निकाला, एवैक्यूएट किया। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन इट। और जब उसको निकाल के उस पे रख के बाहर हमने पहुंचाया और उसकी खातून की कोई रिश्तेदार यंग बच्ची थी, जैसे वो उसको चूम रही थी और एक अनसर्टिनिटी होती है ना कि 57 आवर्स ऑफ द अर्थक्वेक, 57 घंटे के बाद आपका कोई ज़िंदा निकल आए और वो मतलब ज़िंदा हो, तो ये हमने ये फीलिंग्स जो होती है ना, मैं आपको जैसे मर्ज़ी बता दूँ, जो उस टाइम पे आप बंदा फील करता है ना, वो आप दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकते, उसको आप नहीं ला सकते उन चीज़ों के अंदर। और जो उस फैमिली की फीलिंग्स होंगी, देखें जहाँ पे कई लोगों की डेथ्स हुई हैं, कई लोगों के घर ख़त्म हो गए, उनके लिए तो ये मौजज़ा होता है कि कोई बच जाए। बट वी आर हैप्पी एंड वी आर थैंकफुल कि जो हमने रेस्क्यू ऑपरेशन मैक्सिमम किए हैं, सेकेंड डे हम शाम पहुंचे और हमने स्टार्ट किए, हमारे एक नहीं यक्के बाद दीगरे जो ऑपरेशंस हो रहे थे और हमें वायरलेस पे अपने बेस ऑफ ऑपरेशन पे ख़बर मिल रही थी, वो था कि इसको इतने घंटों बाद ज़िंदा निकाल लिया है, इसके पास पहुंच रहे हैं। और इस तरह करते करते जो हमने 15 लोग निकाले, हमारी पूरी टीम ने एज अ होल जिस तरह काम किया, आई थिंक ये अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग थी। और हमें पहली दफ़ा मिशन करने का, ये इंटरनेशनल मिशन का मौका मिला और आई एम रियली ग्रेटफुल, अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। और अपनी टीम के ऊपर मुझे हमेशा फ़ख्र है कि वो कैसे भी हालात हों, वो अपनी परवाह उस तरह से मैक्सिमम रिस्क जो ले रही थी वो पाकिस्तान की टीम ले रही थी और पाकिस्तान रेस्क्यू टीम ने अपना बेस्ट वहाँ पर परफॉर्म किया। अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। रहमतुल्लाह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई, इस्लामाबाद में गए बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है।
इंटरेस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. तुर्की के एडियामन में पाकिस्तान रेस्क्यू टीम के स्क्वाड्स ने खसूसी सर्च आलात के ज़रिए ज़िंदा फंसे हुए मुतासरीन की शनाख्त की और कई कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशंस किए। एडियामन में हफ्ता भर रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद रेस्क्यू स्क्वाड को हताए में तैनात किया गया। हम जब गए थे तो अधियमन गए थे, सेकंड डे ही हमने वहाँ जाके लैंड किया था और वहाँ पे इंटरनेशनल टीम के तौर पे वी वर द फर्स्ट। जब आप वहाँ पहुँचते हैं और आपको जाते ही काम स्टार्ट हो जाता है तो नाइट के टाइम पे एक्सट्रीम वेदर था, एक्सट्रीम वेदर, और पाकिस्तान के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ में होती है, और हमने बहुत कुछ पहना हुआ था और उस बहुत कुछ पहने हुए के साथ आपको काम करना बड़ा ही मुश्किल होता है। आपने मनूवरिंग करनी है ना, बहुत ज़्यादा रबल है, डेब्रीज हैं, बिल्डिंग गिरी हुई उनके अंदर जाना है, क्रॉल करना है, तो आपको बहुत मुश्किल पेश आती है। इतने ज़्यादा ऊपर आप गर्म कपड़े, जैकेट्स और चीज़ें पहन के जाएँ, लेकिन उसके बगैर चारा नहीं था। जो जिस्म का हिस्सा बाहर होता ठंडी हवा के वैसे यख हो जाता था। हम एक बिल्डिंग की सर्च कर रहे थे क्योंकि काफ़ी काम हो चुका था, तो लोग सर्च के लिए भी लेके आते, तो हम बिल्डिंग जो है उनकी सर्च करते थे। अगर कहीं कोई सस्पेक्टेड है विक्टिम, कहीं से कोई एविडेंस मिले हैं कि कॉल आई है, आवाज़ आई है, मोबाइल पे मैसेज आया है, बंदा अंदर है। वो बिल्कुल कोई मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं और सारे के सारा कोलैप्स हो गया था। अब जो उसका ग्राउंड फ्लोर था वो ज़मीन से कोई हार्डली 1 फुट 1.5 फुट ऊंचा होगा, और वहाँ पहले से अंदर ना टीम काम कर रही थी, लोकल सी टीम, लेकिन उनकी लिमिटेशन थी, वो जो छोटा मोटा इक्विपमेंट था उसकी वजह से काम कर रहे थे। जब हम वहाँ पहुँचे उन्होंने कहा जी हम वहाँ तक पहुँच गए हैं, टनल में बंदा एक ही अंदर एक वक्त में जा सकता है और मैक्सिमम 2 जाएंगे, तो आप अगर ये अपना इक्विपमेंट अंदर लेके चले जाएँ और हमें फाइनल कर दें कि जहां हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस दीवार के या बीम के दूसरी तरफ विक्टिम है, अगर कंफर्म हो जाए तो हम आगे काम जारी रखें, क्योंकि हमें मैसेज और मोबाइल पे आया, लोकेशन आई थी, लेकिन उसके बाद वो खामोश हो गया, नहीं पता चल रहा। तो बीम के नीचे से बिल्कुल क्रॉल करते हुए घिसट के अंदर गए। अब अंदर जा रहे हैं और आप उठ भी नहीं सकते, यानी नीलिंग पोजीशन में भी आप नहीं चल सकते, इतना उसमें गैप था टनल में। ऐसे घूमते हुए जो कुदरती बनी हुई है
मलबे के दौरान में जहाँ जहाँ से आपने मलबा हटाया, ऊपर कोई बीम है, कोई सरिया है, तो एक सरिये से अंदर एंटर हुए, वहाँ सामने उस तक पहुँच गए हम। अब उसके परली तरफ वो बिल्डिंग थी, उस पर हमें कोई तकरीबन कितना टाइम लगा था। हमने एक दिन पहले ऑपरेशन शुरू किया था, हार्डली कोई सुबह 10 बजे, पूरी रात भी वहाँ ऑपरेशन करते रहे। अगले दिन जाके कोई 2 बजे हमने 3 लाइव निकाले थे, वो एक ही जगह से तीनों बच्चे जिनकी मदर की अंदर ही डेथ हो चुकी थी। और वो साथ पड़ी थी, पिछले 24 घंटे से या 48 घंटे हो चुके थे, उससे ज़्यादा बल्कि टाइम गुजर चुका था, और माँ की डेथ हो गई हुई थी। और किस तरह वो इतनी सी जगह में फंसे हुए थे, जब हमने उनको वहाँ से ज़िंदा निकाला तो जो उनके जज्बात थे, एहसासात थे, जब हमने उनको निकाला, जो हमारे सो ये चीज़ें ऑब्वियसली एक्सप्लेन करना जो है वो मुश्किल है। कैसा होगा अगर ये मंजर हो, जो मेरे लिए अपने लिए आ गया कि अगर ऐसा हो और मैं हूँ, मेरे बच्चे हूँ, हम सारे इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं और बाहर से कोई आवाज़ भी ना आए, या ऐसा हो कि बाहर से लोग गुजरते हुए जा रहे हैं और हम उन्हें पुकार रहे हैं, वो सुन नहीं रहे, तो कैसा होगा। मौत का उस वक़्त क्या खौफनाक होगा अंदाज़ा। और वो बच्चे जब बाहर आए तो उनकी हालत देखने वाली थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि हम इस पर खुश हों, हम तशक्कुर करें, या हम उस पर अफसोस करें कि हमारी वालदा अंदर है, डेड बॉडी है। तो बस यही है कि हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, हमारा रेस्क्यू का तो ये है ना कि जिसने एक जान बचाई उसने गोया सारी इंसानियत की जान बचाई। इस पर्पज़ से काम करते हैं कि अपनी जान की परवाह उस वक्त नहीं होती। मैं सोचता हूँ कि जब हम काम कर रहे होते हैं, काम करने के बाद जब हम उस एरिए से बाहर निकलते हैं, उस सारे चीज़ों को रिव्यू करते हैं आपस में, तो सोचते हैं कि कितने ख़तरे से हम इसको लेके निकले थे। उस वक्त नहीं लग रहा होता, लेकिन जब उसको दोबारा से पूरा स्टडी करते हैं उस केस को या उसको देखते हैं, तो पता चलता है कि बड़े क्रिटिकल फेज से, बड़े मुश्किल वक्त से निकल के आया और इसकी जान बचाई। एक तरह से खुशी भी होती है और एक तरह से तसल्ली भी होती है कि जो हमारी ड्यूटी, असाइन ड्यूटी थी, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें चुना है, जिसके लिए हमें चुना गया है, उस पर पूरे उतरे, या हमारी आप सुरखरू है। आज हमारी कैपेसिटी है कि हम बाहर की जाके लोगों को मदद कर रहे हैं। सो पाकिस्तान के पास ये सारे वसाइल हैं। पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ। सो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि आज ये कैपेसिटी है कि हम दूसरे ममालिक की भी अब मदद कर सकते हैं। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status.
you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें, अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. हम यहाँ उसका इमेजिन नहीं कर सकते जितनी बड़ी तबाही थी। ये इस सदी का जो है वो 5वां बड़ा ज़लज़ला था पूरी सदी में, और 60,000 पीपल एवरीवेयर, डेवास्टेशन हर जगह पे, लोगों के साथ इतना जज्बाती उनकी फैमिलीज़ को देखना, और मेरे ख्याल में हर दिन जो है वो हमारे लिए एक नया एक सीन था, एक नई चीज़ थी। लोगों को उस सिचुएशन में देखना, उनके साथ मिलना। कई जगहों पे ऐसा भी हुआ कि हम रेस्ट करने के लिए बैठते थे तो साथ हमारे 4-4, 5-5 डेड बॉडीज़ जो है वो पड़ी होती थी। तो अर्थक्वेक में बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स जो है वो क्लैप्स हो गई हैं बिल्कुल, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी थी कि इंटैक्ट हैं।
पार्शली डैमेज हैं, कुछ हिस्सा उसका गिर गया हुआ है लेकिन कुछ अभी कायम है। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट है इस पूरे सिनेरियो में कि हम जिस रबल के अंदर विक्टिम को सर्च करते हैं, फिर लोकेट करके उस तक अप्रोच करनी है। अब हमें अब बाहर से तो नहीं आवाज़ दे सकते कि आप बाहर आ जाएं, तो विक्टिम तक हमें पहुंचना है। और अल्हम्दुलिल्लाह टीम का मैंडेट है कि हमने लाइव विक्टिम वहाँ से एक्सट्रिकेट किए। तो उस तक पहुँचने के दौरान अब साथ एक बिल्डिंग ऐसी जो कि प्रोन टू फॉल, वो गिर जाएगी किसी भी वक्त। तो वो सारी चीज़ें अरेंज करके फिर चीज़ें इंश्योर करके कि सेफ़ हों हमारी एंट्री और हम सेफली विक्टिम को भी निकाल के ला सकें और ख़ुद भी आ सकें। तो वो अक्सर ये रहता था जब किसी कन्फाइंड स्पेस में या ऐसी वॉइड्स, ऐसी स्पेसेस उसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर कई जगह पे बन गई हैं जहाँ विक्टिम है, तो हमें उस तक पहुँचना है। तो वो सारा स्ट्रक्चर अनस्टेबल है और बिल्डिंग्स जो अभी गिरने का ख़दशा है, तो ये दोनों ऐसे ही, और हम उसमें इन एक्शन भी हैं। तो इन सब में जो है ना ये लगता था कि ये हमारे साथ भी हो सकता है। आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं, तो हम रेस्ट भी कर रहे हैं, तो वो रोड साइड पे या किसी ऐसी ही जगह पे हैं जहाँ ऐसी जो मुनहदम नहीं हुई इमारत वो भी हैं और गिर सकती हैं। तो जब कभी ऐसा होता था तो उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ पे कि हमें बिल्कुल किसी खुली मैदान में, खुली जगह पे पहुंचना है, तो दौड़ लगती थी जब कभी आफ्टर शॉक्स आते थे। कहाँ पे 2005 का जब ज़ल्ज़ला हुआ था, लोग हमें बाहर से मदद करने आ रहे थे, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम बनाया और ऐसी पहली टीम बनाई जिसको पूरे जनूबी एशिया में पहली टीम थी जिसको अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफिकेशन मिली। आज उस कैपेसिटी बिल्डिंग की बदौलत हम जब टर्की में ये हुआ है तो उसको हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर सके जब वहाँ पे ज़ल्ज़ला आया। पाकिस्तान रेस्क्यू टीम तुर्किया में 16 दिन के रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद पाकिस्तान वापस आ गई, मगर आते हुए अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क तुर्किया के हज़ारों लोगों की दुआएं भी साथ लेती आई। जब हम वापस आ रहे थे तो हमारे जो लीडर साहब हैं, जो हमारे कमांडर हैं, रेस्क्यू टीम के कमांडर, तो जब हम एयरपोर्ट पे इस्तांबुल पे आए तो मुझे उस वक़्त रोना आया कि जब लोगों ने एक लेन के अंदर खड़े हो गए और फूल पत्तियाँ हम पे ऊपर निछावर कर रहे थे। तो इतने वो क्राइसिस में, इतने डिज़ास्टर में भी वो लोग इस तरह हमारी वो कर रहे थे कि जिस तरह हमको बड़े हीरो हैं। उस वक्त मेरी आंखों में बड़े आंसू थे और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज होगी। जिस तरीके से उन्होंने फिर वो नहीं, मुझे याद है एक जो बहुत बड़ा था जिस वक्त हमने वहाँ पे जा रहे थे और हमने हमारे पास टेंट थे और सामान था जो हमने वहाँ पे जो था वहाँ पे जो हमने देखा कि मुतासरीन है उनको हमने वो दिया, और जिस वक्त उनके कुछ फैमिलीज़ को भी हमने रेस्क्यू किया था, तो उस बंदे ने आके पाकिस्तान के झंडे को जो है वो चूमना शुरू कर दिया। और उस बंदे के जो एहसासात थे, था थोड़ा बुज़ुर्ग था, उसने कहा जिस तरह से आपने आके खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे भी हमारी ये सारा तुर्किया का और पहले भी जब भी ज़रूरत पड़ी है टर्की में, तो पाकिस्तान ने जिस तरह से मदद की है उसी तरह से आज आप आके मदद कर रहे हैं, तो जो उसके जज्बात थे, एहसासात थे, मैं उनको बयान नहीं कर सकता। आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि अगर उसने आके पाकिस्तान के झंडे को जो है वो चूमना शुरू कर दिया तो आप क्या उसके जज्बात और क्या एहसासात होंगे, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। तो वो आई थिंक अल्फाज के अंदर इन चीज़ों को बयान करना जो है वो बहुत मुश्किल है। They are lovely people. I really मुझे तो टर्किश वैसे ही बहुत पसंद है। एक तो वो उनके अंदर आपको एक जो होता है ना ट्रू ब्रदरहुड, जो आप सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, वो आपको नज़र आता है उनके बुज़ुर्गों में, उनके यंग, उनके बच्चियों में। यानी कि आप सोचें कि यंग बच्ची यूनिवर्सिटी की 2 बच्चियां हमारे साथ प्लान में साथ हुई और उन्होंने थ्रू आउट हमारे साथ रही। देवर वॉलंटियर्स, और वो यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी और दूसरी उन्होंने लॉ किया हुआ था अपनी। वो देवर यंग, दे जस्ट टोल्ड कि वी आर स्टूडेंट बट वी आर वॉलंटियर एंड वी वांट टू हेल्प यू, एंड थ्रू आउट द ऑपरेशन दे वर देयर। तो ये जो उधर एक था, और फिर वो इतना पाकिस्तानियों के साथ एक प्यार, इतना मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बिलीव मी कि हमारे झंडे को चूमना, जिस वक्त हम अब वापसी पे अपने टेंट्स उनको दे दिए,
क्योंकि वहाँ पे टेंट्स की उस वक्त शॉर्टेज थी। और फिर जब एयरपोर्ट पे हम क्यू में लगे तो एक फ़ीमेल एयरपोर्ट पे आके वो मेरे गले लगे एंड शी वाज जस्ट स्टार्ट वीपिंग। तो मैंने गेस किया, बिकॉज़ मुझे तो टर्किश नहीं आती थी, तो उन्होंने मतलब ये ग्रैटिट्यूड और शुक्रिया का जो लफ्ज़ अरबी में बोला, जिससे ये समझ आ रही थी कि आप हैं जिन्होंने हमारा इतना, हालांकि उसके हो सकता है डायरेक्टली कोई लोग अफेक्ट ना हुए हों, बट उन्हें ये पता था कि ये टीम अपनी उसके बगैर देखें कि हमारी मदद के लिए आई है। तो वो एयरपोर्ट पे जाओ या जिस तरफ जाओ, टर्किश आर लवली पीपल, मतलब अनडाउटेडली वो, अगर उनको पता, आई होप कि बाकी कंट्रीज़ के साथ भी उनका ऐसा होगा, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ है, मैं सोच रही थी कि हर बंदे के अंदर ये भाईचारा कैसे है। तो देन वी टॉक विद मैनी पीपल एंड फाउंड के उन्हें तो ये लिटरेचर में पढ़ाया जाता है, खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। वहाँ पे कुछ सेरेमनीज़ होती है जिसमें उनका झंडा भी हमारे झंडे के साथ दोनों लहराए जाते हैं। तो वो उनकी जनरेशन्स के अंदर ये चीज़ इनकलकेट हुई है, जो कि एक नज़र आती है। आपका बच्चा जब स्कूल से यूनिवर्सिटी पहुंचता है ना, तो हम तो ट्रैफिक लॉज और चीज़ों के बारे में उनको एजुकेट करते हुए एक अरसा लगा देते हैं, लेकिन उनके अंदर ये चीज़ कि किस कंट्री ने हमारी क्या हेल्प की थी या मुसलमानों ने कैसे हेल्प की थी, वो उन लोगों को पता है और वो बहुत रिगार्ड करते हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी। और टर्किश आर लवली एट ऑल, मतलब मैं आपको इस उनके जज्बात, वो जैसे एक अकीदत के होते हैं ना, उसको मैं यंग, आपको कोई हेजिटेशन नहीं होती वहाँ के मेल्स को देख के, आपको कोई फीलिंग नहीं होती कि आप इनसिक्योर हैं, यू आर 100% सिक्योर देयर, और वो आपका रिगार्ड करेंगे, आपके लिए वो बिल्कुल मेहमान नवाजी के लिए 10 स्टेप आगे जाएंगे। सब कुछ उनका तबाह और बर्बाद हुआ है, इवन दे विल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, दे आर वेरी लवली पीपल। जिंदगियां बची लोगों की, जब वो जिनको उम्मीद नहीं थी कि पता नहीं शायद हम यहाँ से ज़िंदा निकल भी सकेंगे या नहीं, वो लोग बाहर निकले। और जो उनके साथ फिर था, और चूँकि तुर्की के साथ हमारा ख़ास तौर पर पाकिस्तान का एक बहुत पुरानी एसोसिएशन है, तो ये जो फीलिंग्स थी वो बहुत म्यूचुअल थी उनकी भी, और इसलिए उन्होंने रिस्पेक्ट भी दिया। फिर तुर्की के जो स्पेशली प्रेसिडेंट हैं ऑफ टर्की, उन्होंने फिर हमें स्पेशली टीम को भी एक्नॉलेज किया और हमें भी अवार्ड स्पेशली जो है वो दिया, प्रेसिडेंशियल अवार्ड टर्की का। तो इट वाज एन सो उन चीज़ों के लिए, बट उससे भी ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हम उस अपने ब्रदर जो वहाँ के लोग हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए हम खुसूसी तौर पे उनके काम आ सके, उनकी मुसीबत में उनकी हम जाके हेल्प कर सके, हम वहाँ पे ज़िंदगियाँ बचा सके। मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ा हमारे लिए एक सेटिस्फैक्शन थी कि कल को जिस तरह वो हमेशा हमारे साथ रहें, हम उनके साथ रहें, और यही एसोसिएशन हमेशा कायम रहनी चाहिए। Hello and welcome to Business ABC.
But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, bahut vadiya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and come on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम अज़ कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं। गरीब आवाम उन फलों को नहीं खरीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए।
बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ 1 गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं, जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my street pies. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent.
talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity, as opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well.
Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कायम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कायम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ायक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम अज़ कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं,
काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया।